Hello, I'm Sudeep Mandal, and welcome to What's Your Ism. It's a show about political ideologies and theories of change in an increasingly volatile and ever changing world. Now, those of you who follow this show, I'm sure, are aware that what we are focused on is what's vital and not what's viral. The activists, thinkers, authors, lawyers, journalists, and intellectuals we've featured on this show have left me more educated, and I hope that's been your experience too. The show is also built on things I learned through several years as a field reporter. In all these years, I've traveled to different parts of the country and the world to understand people and their political motivations. If you think that my physical and mental labor brings value to your life, if you find yourself educated by this show, please consider compensating the News Minute for the people and infrastructure they've invested in a show like this. You could also directly fund the production of What's Your Ism by paying whatever amount you think is appropriate directly by scanning this QR code. Welcome to episode 2 of Epar Opar Hahakar, the special focused series on Bengal, on the history of communalism and caste in Bengal. And in this episode 2, I'm very happy to welcome somebody I've known for many, many years as an activist and also as a source, R. Khalimullah, Khalim Bhai, जो ऑल इंडिया श्रमिक समाज केंद्रा जो एक ट्रेड यूनियन है. He is the national vice president of this trade union. He's also a human rights activist. At least in the last decade, whenever there has been any kind of persecution of migrant workers, particularly Bengali migrant workers, Khalim Bhai has been at the forefront of the rescue operations. He has taken on police, gangsters, human traffickers, politicians, corporation officials. These 10 years have been very eventful, and I hope I can share, or rather I can bring out some of those aspects in this conversation of what things have been like in the last 10 years for the Bengali migrant population in Bangalore and other parts of South India. Khalim Bhai, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ शो में ज्वाइन करने के लिए. और ये जो डिस्कशन है हमें दखनी में कर लेते. जरूर. दखनी आपको हमारा यहाँ का एक रूटेड, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है एक ज़ुबान है हमारा ये. आपकी तो मदर टंग है ना? हाँ, उर्दू इसमें मदर टंग. जैसा दूसरे भाषा को इज्जत देना वैसा अपना मदर टंग को भी है ना, उर्दू को भी इज्जत रखना है. लेकिन ये जो उर्दू आप बात करते हैं, ये आपको हमारे हैदराबाद का जो उर्दू आता है या फिर जो दिल्ली लखनऊ का जो उर्दू आता है उससे अलग आता है, डिफरेंट. वो अलग उर्दू है. ये हमारा है ना साउथ इंडिया का दक्षिणी उर्दू बोलते हैं. इधर सब भी मिलता है. ये उर्दू में है ना हर लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा मिक्स होती है. और इसमें थोड़ा सा एक ऊपर नीचे का भी एक बात आता है कि बोलते हैं कि ये नापाक जुबान है, ये क्या तो भी लोकल है ये. हाँ, हायर उर्दू लोअर उर्दू करके बोलते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे. अगर फसी उर्दू बात करने जाएंगे तो आप कहाँ बोल सकते हैं. आइए तनावुल करेंगे बोलेंगे, तनावुल को तो लोगों में माइंड में है ना गलत चला जाएगा. ये कुछ अलग करने के बाद तनावुल मतलब खाना खाने के लिए बुला रहा है, वो तो कोई यूज़ नहीं करता. आप यूपी में भी देख लो, कहीं इंडिया में वो उतना प्योर उर्दू यूज़ नहीं होता है, समझे. तो दक्षिणी उर्दू ही बेस्ट है, सब समझने में भी आसान है. हमारे बेंगलुरु के दक्षिणी उर्दू में और हैदराबाद की उर्दू में क्या फ़र्क है, ज़रा एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ भाई. वो ज़रा ये इससे है ना, वो अल्फाज जो हैं वो ज़रा प्योर उर्दू मिक्स करते हैं. उसके बाद हाउ ले ये जाए वो सब है ना, वो तो नॉर्मल, वो तो उतना प्योर उर्दू नहीं है, समझे. वो उर्दू सब वो टाइम पे चला गया. अंग्रेज़ के ज़माने में जो शायर थे, अमीर खुसरो थे, मिर्ज़ा गालिब, वही अल्लामा इकबाल, वो टाइम पे ही प्योर उर्दू था. उसके बाद आते आते मिक्स होते होते हिंदी के साथ मिक्स हुआ. ऐसा फिर साउथ इंडियन लैंग्वेज साथ भी मिक्स हुआ. ठीक है, अच्छी लैंग्वेज है उर्दू, इज्जत वाली लैंग्वेज है, प्यार मोहब्बत वाली लैंग्वेज है. Right. And for those of you who are finding it difficult to follow this conversation, all I can say is that this is a voice from the margins. This is a voice from the frontiers of the fight. And well, if you're finding it hard to follow, what can I say? Lost in translation, the voice of the voiceless.
This is a special segment of What's Your Ism focused on Bengal. I'm calling it Epar Opar Hahakar. Epar Opar means this side and that side. It's a reference to the two Bengals on either side of the international border. Epar Opar Hahakar. Hahakar means a great human tragedy in Bengali, a massive humanitarian disaster. To my mind, that's exactly what's happening to millions of Dalits and lower caste Bengali Muslims on both sides of that murderous international border. Hahakar. This is a look at Bengal beyond the elections and beyond the borders. An investigation into the Bengali Dalits and Bengali Muslims whose lives today are scattered across the region that was once the larger Bengal presidency under the British, or the Bangla Suba, or province of the Mughals. In this series, I'll be joined by three experts. The first is Nadira Khatun, the author of the critically acclaimed book Post-Colonial Bollywood and the Muslim Representation. You might remember that she came on this show and we discussed her book. Nadira Khatun has helped me curate this special series and I owe her a big thank you. After Nadira, in the second episode, I have R. Khalimullah, a trade unionist and human rights activist based in Bangalore who has been extensively working with the persecuted Bengali migrant laborers in this city. This conversation will be in Dakhini, a South Indian language. And in the final episode, I have a very special guest from the other side of Bengal, Dr. Naveen Murshid, author of India's Bangladesh Problem. Her book is a critique of neoliberal capitalism and religious fundamentalism in both India and Bangladesh. Now, before we start, for one final time, tell me honestly, you don't think all this effort is worth a little bit of your money? Not even 500 rupees? You could also directly fund the production of What's Your Ism by paying whatever amount you think is appropriate directly by scanning this QR code. कलीम भाई, अभी ये जो फिलहाल हमें ये जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसको हम बंगाल का जो इलेक्शन चल रहा या फिर असम में जो इलेक्शन चल रहा, इवन बांग्लादेश में हम देखें कि इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन होगा वहाँ, ये जो पूरी वहाँ की जो वो रीजन है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारा एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उसके ऊपर एक फोकस आ रहा है. किस लिए बोले तो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो सियासत है, वो एक हाईली एक कम्युनलाइज्ड एक तरीके से एक लास्ट एक 5-10 सालों से, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो, यहाँ हम देख रहे हैं. दुनिया उसको देख रही, लेकिन हम दुनिया को क्या बोल रहे इस एपिसोड में कि भाई ज़रा बेंगलुरु में भी देखो आप करके जी, राइट. क्योंकि आप वहाँ जब देख रहे हैं बेंगलुरु में कितने लाखों की तादाद में जो बंगाली मुस्लिम्स हैं या फिर बंगाली हिंदूज भी हैं जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग सभी यहाँ हैं. एंड यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ जो चल रहा है उसका वहाँ से क्या ताल्लुक है, इस बेसिक बात पे हम आज की कॉन्वर्जेशन को फोकस करना चाहते हैं. आपके तजुर्बे को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन उस सब के पहले मैं चाहता हूँ कि लोग आपको जाने. मैं तो आपको काफ़ी सालों से जानता हूँ, लेकिन ये जो आपका स्टोरी है, आप एक यहाँ के लोकल उर्दू बात करने वाले, दफनी बात करने वाले यहाँ के मुस्लिम हैं. आप ये बंगाली के चक्कर में कैसे घुस गए, आप कहाँ से आए? अभी बांग्ला बात कर लेते क्या आप? नहीं, बांग्ला नहीं बात करता. बट आपके वहाँ मैं जहाँ कहीं बेंगलुरु में जहाँ पूरा घूमा मैं, वहाँ पूरा जो आपके नए एयरपोर्ट के पास, पुराने एयरपोर्ट का नए जो ऑल ओवर जो आउटस्कर्ट्स का जो बेंगलुरु है, वहाँ सभी ये बंगाली लेबरर्स का टेंट सेटलमेंट्स है. वहाँ कहाँ गए तो भी कलीम भाई कौन बोले तो बोलते हैं उनको, कलीम भाई मालूम है हमको करके. तो ऑलमोस्ट आप एक तरह देखो गमछा भी पहने आप, जी बिल्कुल. कुछ 2-3 रोज की, एक हफ्ता हुआ आप वापस बंगाल से वापस आए, इलेक्शन को भी आप वहाँ जाके थे. तो इतना डीप एक जो एक है एक इन्वॉल्वमेंट है. आप तो आधे बंगाली हो गए, बात नहीं करते, लेकिन उस आवाम के साथ आप बहुत मिल गए आप. बिल्कुल ठीक है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आता है, ये आपका क्या है. ये शो का नाम है व्हाट्स योर इज्म. इस तरह से हम मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, अम्बेडकरिज्म बोलते हैं. आपका इज्म क्या है, आप कहाँ से शुरू करें इसको, जरा
एक शॉर्ट में ज़रा डिस्कस कर लेंगे सलीम भाई। आप आपका आप बैंगलोर से ओरिजिनल नहीं है, कहाँ से थे आप कहाँ बिलॉन्ग? मैं यहाँ से 110 किलोमीटर पुंगनूर बोल के आंध्रा और कर्नाटका बॉर्डर में मेरा गांव है। एक छोटे से गांव से आता हूँ मैं। तो मेरे पिताजी जो है वो फार्मर हैं, पोल्ट्री फार्म था हमारे पिताजी का। तो मेरी लाइफ जो है वो 3 हिस्सों में बँटती है। एक 15 साल तक मेरी वो पढ़ाई का जो स्ट्रगल था वो, उसके बाद 10 साल जो है मैं अपना कमाई के लिए, बिज़नेस के लिए हुआ, तो 25, फिर 25 साल जो है ओनली एक्टिविज़्म किया मैं ग्राउंड में। एक्टिविज़्म करना मतलब मैं बहुत कुछ सीखा। तो फर्स्ट मेरी बेसिक पढ़ाई जो है, मेरी फर्स्ट टीचर जो है जिसका नाम बिल मिस है, समझे, वो एंग्लो इंडियन है। उसने मेरे को पेंसिल पकड़ के ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब सिखाया। तो अच्छा चल रहा था। जैसे मेरे बाद एक ट्रिनिटी कॉन्वेंट बोल के जो मेरे गांव में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, उसमें मैं पढ़ रहा था। साथ में मेरे भाई बहन भी पढ़ रहे थे साथ में। सडन से एक दिन एक हादसा होता है। मेरा स्कूल टीचर जो है वो सेक्सुअल असल्ट करता है मेरी क्लासमेट के साथ। तो वो टाइम पे मेरे को कुछ दिखा। वो टाइम पे 4th स्टैंडर्ड में, मैं भी छोटा बच्चा। तो मेरे को वो टाइम पे थोड़ा बुरा दिखा, तो मैंने उसे वो धक्का ही कर दिया टीचर को, ऐसा नहीं करना बोल के। तब उसने मेरे को डस्टर से मारा था, तो इधर ब्लीडिंग हुआ। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो थोड़ा गुस्से में आके हल्ला करे। फिर प्रिंसिपल के पास लेके गए। लेके जाके बोले ऐसा टीचर ने मारा है। तब मैं बताया ऐसी चीज़, गलत हरकत कर रहा था क्लासमेट के साथ, लड़की के साथ मेरा टीचर। तब है ना, वो मेरे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट सब को मालूम था कि वो टीचर जो मेरा है वो वैसा ही काम करता है लड़कियों के साथ। तब जाके वो फिर वो लड़ी लेकर, तो लड़की जो है ना स्टेटमेंट बदल गई, बच्ची थी वो बदल गई। तो फिर है ना पूरा रिवर्स मेरे पर हो गया। तो मेरे पिताजी जो हैं वो एकदम मेरे को एक बचपन से टीचर के ऊपर हाथ उठा दिया, रउडी ये वो सब पूरा हुआ। उसके बाद आपका नाम खराब हुआ? हाँ, नाम खराब हुआ। उसके बाद जो है मेरी तभी समझ में आया मेरी लाइफ जो है थोड़ी पढ़ाई में ये हो रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी ने एक गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू स्कूल में डाल दिया। तो वहाँ मेरे को 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिला। उसके बाद हम देखा कि वो 6th स्टैंडर्ड में है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाद में ओल्ड मैकडोनल्ड, हैड ए फार्म। मेरे को इंग्लिश मीडियम में इया ओ करके एक टोन आता था, इधर अय्यो कहता था हमारा उर्दू टीचर। तो मैं समझ गया, तो मैं तो गया, मेरी तो पढ़ाई ख़त्म हुई, अभी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही चल रही थी। तो वो टाइम पे है ना टीचर्स लोग भी हमारे बिल्कुल सही नहीं थे, कहानी बोलना, ऐसा क्लासेस कुछ भी ये नहीं था, स्ट्रिक्ट नहीं था एजुकेशन। उसके बाद 7th पब्लिक एग्ज़ाम पास किया। फिर है ना 8 में मेरे को चिकन पॉक्स आया, तो 15 से 20 डेज़ मेरे छुट्टी हो गई थी। वो नीम का पत्ता डाल के सब घर में ही रखा था। तो फिर जब मैं फिर स्कूल जॉइन किया, तो मेरा टीचर है ना हेडमास्टर था, तो उसने मेरे को 500 रुपीज़ फ़ाइन लगेगा बोला। तो मेरे पिताजी जो हैं एक बहुत उसूली और स्ट्रिक्ट आदमी हैं उसूल केस में। उन्होंने बोला रिश्वत नहीं देता मैं, वैसा स्कूल जाने का ही ज़रूरत नहीं, तुम कपड़े के दुकान में बैठो बोल के मेरे पिताजी का कपड़े का दुकान भी था मार्केट में, उसमें बिठा दिया। तब मेरा एक उर्दू स्कूल मैथ्स टीचर था मोहम्मद अली सर, जो अभी रिसेंट उसको आंध्र प्रदेश का है ना बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है 25 में। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बच्चे की ये ख़राब हो रही है बोल के, फिर मेरे को एमआरओ के पास लेके गए। लेके जाके बच्चा के अंदर टैलेंट अच्छा है, ये बार 10th का एग्ज़ाम बैठने दीजिए तो ये होगा बोल के, फिर वीवो के पास लेके गया, वहाँ लेटर दिया पूरा। मोहम्मद अली सर ने मेरे को 10th का एसएलसी का एग्ज़ाम लिखाया, तो मैं पास हुआ। उसके बाद एक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बोल के, उसमें मेरा एक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बोल के उसमें मेरे को लेके जाते हैं, क्योंकि जितना जमात इस्लामी का हाँ student। जमात इस्लामी की एक स्टूडेंट विंग है, वो कड़पे से आके मेरे को लेके जाते। 3 डेज़ है ना एसआईओ का स्कूल चलता है। तब उसमें जो है मेरे को इतना चेंज दिखा, वो बाकी लाइफ तो वो अलग थी। उसके बाद हम इसमें देखा कि कम्युनल हार्मनी के ऊपर वो लोग बहुत अच्छा है ना स्टूडेंट्स के अंदर ये डालते हैं, नफ़रत नहीं रखना दिल में, प्यार मोहब्बत से रहना, उसमें देशभक्ति भी जगती है अच्छा सा। तो एसआईओ में आप देख एसआईओ में बिल्कुल ऑनेस्टली बोलता हूँ,
अगर तराशना है तो वो लोग, वो नौजवान ही वो ख़राब नौजवानों को तराशते। तो मेरे साथ जो फ्रेंड सर्कल थे वो सब है ना, बहुत कम उम्र में जो है बहुत सारे गलतियां कर रहे थे, वो सब रिफॉर्म हुए। स्टूडेंट्स का अच्छा रिफॉर्म प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद जब है टेंथ मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मैं 1990 फर्स्ट 13 मई को मैं बेंगलुरु आया। आज 35 साल हो गए बेंगलुरु का आके। तो जैसे ही मैं आया तो मैं बनशंकरी में यारब नगर है, वहाँ पे एक मैकेनिक का दुकान, मैकेनिक का शेड वो बंद था गली में। तो वो किराए पे लिया 500 रुपये में। मेरा ओनर का नाम इलियास भाई बोल के, मैसूर वाले, स्क्रैप का धंधा कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को दिया। तो मेरे साथ और भी एक दो लड़के थे गांव से आए हुए, हम लोग थे। तो मेरा मम्मी है ना एक चेन दिया था, वो सेल करके मैं 2000 रुपीज़ डाटामेटिक कॉरपोरेशन बोल के, वो इंडियन बैंक के पीछे के रोड में है मैजिस्टिक में, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो मैं तो उर्दू मीडियम से आता हूँ, तो मेरे को इंग्लिश थोड़ा दिक्कत थी, बहुत गैप हो गया था इंग्लिश का। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो मेरा यारब नगर से वो 12 नंबर बस पकड़ के मैजिस्टिक आना था। तो मैं मैसूर बैंक सर्कल में उतरना था। तब उतना बेंगलुरु ट्रैफिक भी नहीं था, फ्री रोड थे। तो वो 1 रुपये 4 आने मैसूर बैंक को टिकट थी 90s में, और 1 रुपये 50 पैसे मैजिस्टिक में उतरे। तो वो 4 बार हमने देखा, रास्ता देख लिया। फिर उसके बाद हम 1 रुपये 4 आने बचाने के लिए वो यारब नगर से चलते हुए बसोंगुड़ी ऐसा आते हुए फिर है ना, हम वो मैजिस्टिक में वो इंडियन बैंक मैसूर बैंक के पास, वहाँ हमारी इंस्टीट्यूट थी, वहाँ पढ़ाई करते थे। फिर रास्ते में है ना वो लाल बाग ये सब, उधर भी बैठ के पढ़ाई करना। और मैं बोलता हूँ पढ़ाई नहीं था, वो एक्चुअली रटता था मैं इंग्लिश, तो है ना बाय हार्ट, क्योंकि हमें बचपन में है ना वो कुरान अरबी भी है ना हिफ्स का वो आदत हो गई थी, इजी से हम रट लेते थे। तो उसमें वो इंग्लिश भी मैंने रटना शुरू किया। तो वैसे ही एग्ज़ाम लिखा, उसके बाद मैंने बी ग्रेड में पास हुआ। उसके बाद जब हम अपना कमाई के लिए ढूंढ रहे थे, क्योंकि मेरे वालिद हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसा मैं अपने बचपन से मेहनत करके कमा के आज प्रॉपर्टी सब बनाया हूँ, तुम भी वैसा ही बनाना बोल के मेरे वालिद का स्ट्रिक्ट था। और कभी भी गलत नहीं करना ज़िंदगी में, सही रास्ते पे चलना, ऐसा बहुत मेरे वालिद के टीचिंग्स हैं, उसूल हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी एक्टिंग नहीं करना, जैसा नेचुरल तेरे को ऊपर वाला बना वैसे ही रहना। तो ये चीज़ें उसूल थी, तो हम उसमें गए, तो वो चलते बचपन गए। के वो उसूल, बचपन का वो हाँ। वो एक बागीपना, जो टीचर को मारे, टीचर आपको हाँ, वो मारे, सब ये सब पूरा चल रहा है। तो घर में ये परवरिश हो रही है, और बाहर जो आपकी दुनिया का जो जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड व्यू बोलते हैं, उसमें एसआईओ और ये जो जमात इस्लामी का जो भी एक वर्ल्ड व्यू है, उसके वजह से भी आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी एक हो हाँ। रहा है आपका, एक कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब वगैरह आप देख रहे हैं। तो इसके बाद जो है लाइफ जब कमाने निकले, तो 5 रुपये पर डे मेरे को सैलरी मिलती थी जयनगर 4th ब्लॉक में रेफ्रिजरेशन सेंटर में। उसके बाद मैंने ब्लू स्टार ज्वाइन किया MG रोड के पास, AC मैकेनिक का। मेरा दोरेराज बोल के मेरा सीनियर था, वही मेरा मेन टेक्नीशियन, उसने मेरे को कुछ सिखाया। वो तमिल वाला था, लेकिन मेरे को बहुत चाहता था दोरेराज। वो अलग बात थी, शाम के बाद थोड़ा ड्रिंक्स लेता तो मैं बार के सामने उसको खड़ा रहना पड़ता मेरे को। फिर गुरु है मेरा वो सिखाने वाला, उसके साथ ही रहता। जब वो ड्रिंक मार गए तो घर तक जाते, छोड़ते, बाद में फिर मैं अपना रूम जाता। तो ये लाइफ चल रही थी। उसके बाद इनकम सोर्स बहुत महंगाई थी। वही यारब नगर के जो रूम में रहते थे, मेरे साथ और भी 2 लड़के रहते थे। तो हम लोगों का भी बहुत तकलीफ था, हमको खाना बराबर से नसीब भी नहीं होता था, इनकम सोर्स नहीं था। तो 1 रुपये 4 आने बचाने के लिए चल के जाता था। और 12 साल की उम्र से मैं स्मोकिंग हैबिट, उर्दू स्कूल में मेरे टीचर लोग जो रिंग छोड़ते थे क्लासरूम में बैठ के, वो हमको अच्छा दिखता था। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बच्चे भी है ना, हम छोड़ दे, तो वैसे ही हो गया। पैसा नहीं तो खाजा बीड़ी 2 रुपये कट्टा लेके हम अपना ज़िंदगी करते। तो स्मोकिंग हैबिट वहाँ उर्दू स्कूल से बचपन से आ गया था। उसके बाद जब हम ये देखे तो इनकम सोर्स कुछ भी नहीं, कमाई नहीं हो रही है। हमको वो टाइम पे 2 रुपये परोठा था, अभी तो छोटा है परोठा ताज होटल का, वो टाइम में बड़ा रहता परोठा। तो हम उसको टर्की टवल बोलते थे। वो सांबा शेरवा में भीगने डाल के वो रख दिया, तो मुँह हाथ धोए तक वो रहता, तो ऐसे खाते नूडल्स के सका। तो वैसा हमारा लाइफ चलता था। 4 आने इडली था
तो सस्ता ज़माना ये टाइम पर कमाई भी कम था। ऐसे भी क्या 90s में चल रहा है? हाँ 90 पूरा 1990 मई के बाद बोल रहा हूँ ना। एंड सो अभी आप पहली बात तो मैं स्टोरी सुन के मेरे को ये बोलना है कि इस शो में ऑलमोस्ट 40-50 लोग आए हैं कलीम भाई। एंड ज़्यादातर क्या, मैं एज अ उसूल की बात से मैं किसी राइट विंगर को नहीं बुलाता यहाँ। हमारे प्रोग्रेसिव थिंकर्स, एक्टिविस्ट, लॉयर्स, ऐसा लोग आके हैं यहाँ। लेबर की बात करें हम, मार्जिनलाइजेशन की बात करें हम, एक्सक्लूजन, ये सब बात करते हैं हम कॉन्सेप्चुअली, लेकिन कौन भी वो जो खुद एज अ लेबरर काम किया है या फिर खुद जो एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आके फिर एक एक्टिविस्ट बना है, ऐसा मेरे को लगता है आज तक यहाँ पे इस शो में तो नहीं आए। बट हम ज़्यादातर क्या होता है, हमें ये जो लैंग्वेज के वजह से बोलो कि एक्सेस बोलो कि क्या की बोलो, जो सही जो ग्राउंड लेवल ग्रास रूट में काम कर रहा था आदमी, उसको हमें करेक्ट टाइम पे फीचर करने नहीं होता हमारे मीडिया में। तो मेरे को बहुत खुशी फ़ख्र भी हो रही है मेरे को कि आपको आके यहाँ एक कम से कम आपका एक स्टोरी शेयर करने को मेरे को 15 मिनट चांस मिला करके दुनिया के साथ, कि लोग जाने कि कौन है कलीम भाई, कैसा आया। क्योंकि देखो क्या होता है, ये जब पेट भरा रहता नहीं, बोलते हैं काफ़ी लोगों के बारे में बोलते हैं जो ये रेवोल्यूशनरी बन जाते नहीं। अभी हमारे जंगलों में भी हम देखें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के बाद बाद में आके बंदूक पकड़ के बोलते हैं हमें रेवोल्यूशनरी है। इसमें कोई गलती तो हम ढूंढ सकते हैं, अलग बात है, बट नेवरदलेस जिनको वो बचाने आते हैं वो खुद उस सेक्शन से नहीं आते हैं। एंड आपका वो एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड जो है, ये अभी आप जो लेबर का काम कर रहे हैं उससे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, खुद का पर्सनल तजुर्बा है आपको। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कलीम भाई, मेरे को ये सब के बीच में जब एक आदमी ऑलरेडी पैसे की वजह से तड़प रहा, रोटी को इसमें सालना में डुबा को उसको नूडल्स बना के खा रहा आदमी, एक्टिविज्म में काय को आता, क्यों आता, कैसे आता, क्या हुआ? आप ये एंड इम्पोर्टेंटली क्या है बोले तो आप SIO वगैरह में जस्ट वो टाइम पे मेरे को जहाँ तक कि मालूम है, आप एक क्या बोलते हैं, एक मीटिंग्स वगैरह में जाते थे, फुल टाइम ऐसा नहीं थे आप उसमें? नहीं, फुल टाइम नहीं थे। करते करते आप आ गए लेफ्ट सर्कल में आ गए। ये कहाँ से आया, एक जरा शॉर्ट में मेरे को बताओ। उसके बाद हम आज के जो टॉपिक है उसके बाद हम उसके ऊपर आएंगे। हम ये लास्ट कनेक्टिंग लिंक क्या है, आप SIO से आके कैसे लेफ्ट एक्टिविस्ट बन गए आप? लेफ्ट में आए तो वही जैसा जैसा तकलीफ महसूस कर रहा था मैं, तो इधर भी जो है मेरे को फर्स्ट फ्रेंड मिला, इधर भी है ना दूसरे एक्टिविस्ट लोग मिले थे। तो 10 साल जो है मैं कमाने के लिए, मेरे इसमें डेयरी में है पूरा इंसान के 32 दांत थे ना, उतने 32 महीने बिजनेस किए, चप्पल से लेके कपड़े से लेके बुच्चर का काम किया। एक मुर्गी छीलने में 8 आने मिलते थे, तो 100 मुर्गी छीलने में 50 रुपये मिलते, उसमें हमारा जीवन चलना है ना, उसमें पूरा दिन ये 50 रुपये इस्तेमाल करना था। तो सेल्समैन के सका हांगकांग बाज़ार, बर्मा बाज़ार, उधर सब सेल्समैन बन के भी काम किया। तो उसमें बहुत उसमें मेहनत करने में, कमाने में क्या शर्म नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम भी किया। तब जाके मेरे को समझ में आया कि एक इंसान की तकलीफ़ क्या होती है। मेरे वालिद जो भेजे घर के बाहर, वो बहुत अच्छा किया, समझे। पैसे की वैल्यू मालूम हुई, इंसान की भूख की वैल्यू मालूम हुई, तो इंसान के अंदर जो अहंकार, जो तकब्बुरी रहता है ना, वो मर जाता है। इंसान है ना झुक के चलना सीखता है। तो हमने आगे बढ़ा, तो फिर मेरे दोस्त लोग मिले, तिरुमूर्ति, जो बदनसीबी हमारी कि वो हमारे बीच में नहीं है, अच्छा एक्टिविस्ट था। तिरुमूर्ति, हाँ, वो मेरे को कर्नाटका कोमुसार वेदी के था तब। गौरी लंकेश थी, के अशोक, ये हमारा सब तो पूरे मिल के, हाँ, शिव सुंदर सर, नगरी बाबाई, सब ये सब मेरे शिव सुंदर आए थे, शो में आए थे। हाँ, शिव सुंदर सर, ये सब मेरे उस्ताद हैं एक्चुअली। तो मेरे को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको, जरा एक सेकंड लेके फिर बाद में हम मेन टॉपिक में आएंगे। तो क्या हो रहा था, तो ये 90s के टाइम पे जब ये सब कोमुसार वेदी के अर्ली 2000 मिड 2000 में ये स्टार्ट हुआ, आदि उडुपी का केस हुआ, हाजबा हसनाबा को उनको क्या बोलते हैं, कपड़े खोल के उनको परेड कराए उनको, हाँ, ये सब हुआ। तो वो टाइम पे कोमुसार वेदी का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड आप जैसे लोग जुड़ना शुरू हो गए क्योंकि माहौल ऐसा तैयार हो गया। ये मेरे समझ में ये आ रहा है मेरे को कि क्या ऐसा था, क्या था? बस वही एक मूवमेंट में जुड़े, मीटिंग अटेंड करते थे सभी। मेरा मादरी ज़बान जो है उर्दू है, मेरा कन्नड़ा ज़बान जो मैं बात करता हूँ
वो मेरा स्नेहित भाषा है। मेरे को तिरुमूर्ति ने कन्नड़ा बात करने रखा, कलीम भाई आप कन्नड़ा बात करना, क्योंकि मैं खाली उर्दू बेल्ट में ही था तो मैं वो नहीं आ पाया, तो फिर इसने मेरे को बातचीत में कन्नड़ा अच्छा सा बात करने रखा। तो फिर वो दूसरे कई दोस्त हुए, फिर अल्टरनेट लॉ फोरम में जब हसन मंसूर साहब थे, वो टाइम पे फर्स्ट मैं ALF गया था, तो वहाँ पे लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या है वो मेरे को सीखने मिली। उसके बाद जो है फिर मैं APCR में भी रहा, काम किया 2012 से 2016, 4 इयर्स जो है मैं फुल टाइमर APCR में था। तभी आपसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो मेरे को वो टाइम पर ज़रा अच्छा क्या दिखा कि आपने वो जर्नलिज्म पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे जो गुरु हैं इरशाद अहमद जैसे साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो फेक ये फॉल्स केसेस में जो मुस्लिम यूथ को पकड़े जा अरेस्ट करे जाते हैं उसके खिलाफ, फ्रेंड को भी जर्नलिस्ट, उस टाइम पे हाँ। अरेस्ट किए थे। हाँ। तो वो केस में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जब कन्नड़ा बात करो बल्कि कोई जर्नलिस्ट गोदी मीडिया थी वो बोल रही थी, तो हमारे सर कन्नड़ा था, आप हमने बोला सर आपको जो भाषा आती है उसमें बात करना। तभी मैं फर्स्ट टाइम आपको देखा, कोई तो है जो खड़ के बात करता है, हिम्मत देता है लोगों को। तो वहाँ से आपसे भी मेरा तारुफ हुआ। तो फिर ये चीज़ें चली। देखिए अभी मेरा लाइफ देखे तो वो मैं एक पिक्चर देखा आमिर खान का, क्या लाल सिंह चड्ढा, वो देखा तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा, मैं 84 का दंगा भी देखा, इंदिरा गांधी के शूट होने के टाइम पे, 92 के बाबरी मस्जिद के दंगे भी देखे मैंने। फिर 2002 में मैं बेंगलुरु से सीधा अहमदाबाद ट्रेन पकड़ के वहाँ भी सोशल सर्विस किया। मैं कई ज़ख्मी औरतों को देखा, मजबूर औरतों, कैंप में मैं काम भी करने गया था। और मैं वहाँ के जो बड़े-बड़े मौलवी साहब लोग जो कैंप चला रहे थे, वहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट भी हुआ कि वो तो अंदर अच्छा-सा बिरयानी वो खा रहे थे, कैंप में तो खिचड़ी बन रही थी। तो कहीं न कहीं वो ये देखा मैं तो ऐसे-वैसे आता हूँ तो मेरे को वो सब रिलीजियस का सब नॉलेज है। इस्लाम में है ना इक्वालिटी है, वो डिफरेंसेस ऊँची जात, नीची जात ये नहीं है बोल के। वो आने के बाद फिर ऐसे ही एक्टिविज़्म में लगा रहा। 2002 का दंगा भी देखा, समझे। उसके बाद हमें क्या है पब्लिक सर्विस में उतरना, ऐसी नफ़रत क्यों फैल रही है, मोहब्बत से रहना, प्यार मोहब्बत। जब कर्नाटक को मसारवेदी को मिला तो उसमें हर जाति का आदमी मेरे को मिला, दलित भी मिला, समझे, ब्राह्मण भी मिला, सब है ना, एक चीज़ अच्छी दिखी हमें, एक परिवार। तो एक अलग इन्वायरमेंट, इधर लेफ्ट वाले विनय श्रीनिवासन भी आते थे, क्लिफ्टन थे, सब है ना, मेरे को अच्छा सा एक मोहब्बत का माहौल मिला, यही मेरा परिवार। पहले जो ज़िंदगी थी वहाँ स्कूल में सब रूखी-रूखी ज़िंदगी थी, कोई गुलदस्ता नहीं था। यहाँ तो गार्डन सिटी बोलता है ना बेंगलुरु को, वैसा हर फूल इधर है, तो हर फ्लावर है, तो मेरे को अच्छा भी दिखा। तो ये चीज़ें मैंने महसूस किया। सबसे भी मैं ज़रा-ज़रा नॉलेज लिया, लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या है, ये सब है ना, लेबर राइट्स के वास्ते जितना क्लिफ्टन, मैत्री, ये लोग सब काम करते थे, वो सब मेरे को बहुत इम्प्रेस कर रहे थे, गरीबों के लिए खड़ा होते। तो आज भी मैं जितना भी मज़दूर जो डरता है, पुलिस उसको फ़ॉल्स केसेस में लेके जाती है, तो फ्रेम करती है, मारती है। तो मुझे जो है स्टार्टिंग में जो बेंगलुरु में, मैं भी तो प्रवासी हूँ, बाहर से आया, तो उसमें मैं वो 15 साल का, 16 साल का जो कलीम है, वो मेरे मज़दूर में दिखता है, जो डर-डर के जीता है, ज़बान नहीं आती है, वो चीज़ें सब, और भूखा रहता है, फिर भी मेहनत करके कमाता है, उसको बस नहीं आती है, सब पूरे चीज़ें मेरे को इंटरैक्ट करके कंप्लीट एक्टिविज़्म में लेके आ गए। नहीं, मेरे को बहुत खुशी है आप इतना हमारे साथ शेयर किए। आधा घंटा हम डिस्कस करें कि आप कौन हैं, आपकी अ, आपकी इज़्म क्या है करके। थैंक्स फॉर दैट करीम भाई। बट अभी ये जो पूरा जो एक्टिविज़्म का जो हमारा ये जो सर्कल है या फिर जो प्रोग्रेसिव सर्कल है कर्नाटका में यहाँ जो है, मैं जहाँ तक कि जानता हूँ, आप अकेले ऐसे हो जो ऑलमोस्ट 100% आपका फ़ोकस है बंगाली माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर। उसमें भी हम ये बात को ऐसे सपोज़ मान सकते हैं कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लेबरर्स में ऊँच-नीच क्रिएट कर रहे हैं हम, बट जो हिंदू लेबर्स जो आते हैं वहाँ से, वो भी दलित या फिर लोअर कास्ट कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन कम से कम उनकी ज़िंदगी में इतनी गुर्बत नहीं रहती। कहीं तो किसी के घर में खाना पकाने का काम हो, घर साफ करने का काम हो, सिक्योरिटी, ये जो क्या ये गिग वर्कर बोलते हैं नहीं, हाँ। ओला, ज़ोमैटो ये सब वगैरह कर लेते। वही चाह को अगर एक बंगाली मुस्लिम वो काम करा तो उसको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, बाय चांस
किसी भी तरह उसमें घुस गया तो हमें ये लास्ट 10-15 सालों में हम देखे हैं कि बाई चांस कोई जस्ट ऐसे किसी डिलीवरी सर्विस में घुस गया या फिर किसी सिक्योरिटी सर्विस में घुस गया, उसकी आइडेंटिटी को लेके बाद में उसके ऊपर बहुत सारे जुल्म होते हैं उसके ऊपर। तो फिलहाल मैं उस आपका जो ये 10 साल का या 15 साल का जो फोकस्ड आपका जो तजुर्बा है, उसको हम कोशिश करेंगे कि अभी आपका स्टेप बाय स्टेप आपने जो देखा, इसको हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे। आपको मैं बोल रहा था, हम काफ़ी बार डिस्कस किए हैं कि ये बंगाली मुसलमान काहे को ऐसा है, ये कंडीशन इनका। इंडिया में मुसलमान ऑल ओवर इंडिया में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी कहाँ देखे तो भी मुसलमान है। लेकिन ये जो सबसे गुर्बत की ज़िंदगी है, सबसे मुश्किल जो काम है, कचरे का जो काम है, वो आके बंगाली मुसलमान ही कर रहा वो। काहे को? हिंदुत्व के टाइम में पोस्ट बाबरी मस्जिद हम बात करते हैं, पोस्ट गुजरात हम बात करते हैं, पोस्ट 2014 करके बात करते हैं। अलग-अलग टाइमलाइन है ये, जहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े जुल्म हुए कम्युनिटी के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद एक ही कम्युनिटी है, ना सिर्फ बेंगलुरु में, ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे तो, चाहे वो दिल्ली है, चेन्नई है, हैदराबाद है, केरला के कितने सारे सिटीज़ हैं, ये कचरे का काम आपको खाली बंगाली मुस्लिम कर रहा है ना। एंड हम बात करने के टाइम, क्योंकि मैं इसके ऊपर काफ़ी फील्ड वर्क भी किया हूँ, बात करने के टाइम हम सोचते थे चलो भाई इमीडिएट कुछ रीजंस हैं। बंगाल में डेवलपमेंट का इशू है, वेस्ट बंगाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, असम में तो एवरी सेकेंड डे वहाँ पे फ्लड होता है, ये होता है, वो होता है करके, वो माइग्रेशन का एक इमीडिएट रीजन हमको मालूम पड़ रहा। बट फिर भी हमको एक और चीज़ दिखने में मिली कि ये बंगाली मुस्लिम जो है उसका जो रीज़न है वो खाली इमीडिएट नहीं है, इसमें क्या तो एक हिस्ट्री भी है, 100, 150, 200, 300, 400 साल का एक हिस्ट्री है, जिसके वजह से वो लोग आज इस कंडीशन में है। तो उस हिस्ट्री को फोकस करने के लिए मैं 2-3 अलग इंटरव्यूज कर रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा था ना मैं कि ये बंगाली मुस्लिम कैसे आए, लेकिन उसको बात करते टाइम पे हमें फिलहाल जो कंडीशन है उसके ऊपर भी फोकस करना, और उसके लिए आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करेंगे। हलीम भाई, ये बंगाली मुसलमान का बेंगलुरु को ही ले लेंगे, अभी अलग अलग देखने का जरूरत नहीं है, फिर बेंगलुरु का ही देखेंगे। कौन से साल से ये लोग आके ये गार्बेज सेक्टर में एंटर होना शुरू हुए, वो वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करेंगे हम। कौन सी साल में, एक 15 साल हो गया? हाँ नहीं, 2010 से आना शुरू हुए। 2010 में 2010 से थोड़े पहले लोग देखे तो आए, हाँ थोड़े लोग आए तेलुगु थे। महादिगा हाँ या फिर तमिल हाँ, अरुंधतियर, तेलुगु ये वाले लोग ही ज्यादा ये लोग थे। तमिल अरुंधतियर रहेंगे, अरुंधतियर कम्युनिटी से, बिल्कुल। या फिर तेलुगु महादिगा रहेंगे, वो दोनों एक ही टाइप के कम्युनिटी से, तेलुगु बात करने वाले, वो लोग ज्यादातर ये काम करते थे। तो 2010 से ये चेंज हो गया। क्या क्या चेंजेस हुए, क्या कैसा होने लगा, ये बताओ फिल्म में। एक्चुअली वो 2010 में क्या हुआ, फर्स्ट ज़्यादा वहाँ फ्लड आना शुरू हो गया बंगाल तरफ में ना, जहाँ वो उसमें बहुत सारा किसानी ख़त्म हुआ था। और उसके बाद जो है वहाँ उसके बाद तो दिखने में आया कि किसानी पूरा किसान लोग परेशान हैं। ये किसानी के बच्चे जो हैं सिटीज़ में आके अपने आप को मजदूर कहलाए। मजदूर एक अलग ब्रीड से नहीं है, वो किसान का ही ब्रीड है, किसानों का। 2010 में जो है इधर बेंगलुरु में मुकुल, गुलाब, ये लोग सब है ना मजदूर लेके आके वो मारथली के तरफ है ना, वो लोग फर्स्ट बसा उस ना पुराना एयरपोर्ट मारथली, अभी मोनेकोलाला बोलता है ना वो साइड। फिर लेके बसा, फिर है ना अपने औरतों को भी लेके आके वो अपार्टमेंट में काम करना, वो टाइम पर स्टार्ट हुआ। तब उतना अपार्टमेंट नहीं थे, घरों का काम पे जाते थे, कोई होटल में जाके काम करते थे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनकम सोर्स है ना बंगाली लोगों को मिलना शुरू हुआ। हस्बैंड कचरा चुनने जाएगा, प्लास्टिक चुन के वो बीएमपी का काम करके आएगा। उसके बाद जो है वो कचरा का जो ड्राई वेस्टेज है वो डाल के, वेट वेस्टेज अलग करके, ड्राई वेस्टेज सेग्रेशन करके, उसमें से वो प्लास्टिक है ना बॉटल गिटल वो चुन के वो बीवी चुन के देगी, तो हस्बैंड चुन के ले गए, वो सेग्रेट करके देगी। तो उसमें आज भी वही प्रोसीजर चल रहा है हस्बैंड वाइफ का। उस टाइम पे थोड़ा पीसफुल था, मतलब ये बिल्कुल बांग्लादेशी क्या भी नहीं था। इन्फिल्ट्रेटर, ये सब नहीं 2010 में नहीं था। कब से शुरू हुआ करीब नहीं, ये? ये बांग्लादेशी हुआ 2014 के बाद ही मैं ये सुन रहा हूँ। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हाँ बनने के बाद हाँ से? बिल्कुल, उसके बाद ही है ना ये चीज़ें सब है ना बाहर आई। फर्स्ट मैं देखा 2014 में मोदी जी जैसे ही जीते, जयपुर में मैं जैसे कि ये रैक पिकर्स के बीच में ही तो जाता हूँ काम करने के लिए, तो वैसे ही पेट बॉटल्स, गुडोन, स्क्रैप का गुडोन दिखा के टाइम्स नाउ में न्यूज़ चला रहे थे कि ये लोग जो है हवन करके धर्म परिवर्तन, घर वापसी,
मोदी जीतने के बाद मैं टाइम्स नाउ में देखा तो मैं हंस लिया। नहीं नहीं समझा नहीं मैं, क्या क्या बोलो? टाइम्स नाउ तो में बंगाली मुस्लिम लोग ये लोग सभी कचरा का काम कर रहे थे। चलने वाले थे, तो उनका धर्म परिवर्तन, घर वापसी बोल के एक न्यूज़ में जयपुर राजस्थान में फुल हाईलाइट हुआ। ये कचरा चुनने वाले, ये बंगाली हो, पश्चिम बंगाल का हो, बांग्लादेशी हो, ज़्यादातर सिटीज़ में ही जाते। तो उधर बांग्लादेशी लोग कुछ थे, उनके गुणों थे, वो दिखा रहा है टाइम्स नाउ में, और लाइव भी चल रहा है कि घर वापसी, हवन, हाँ ये सब है ना, घर वापसी हिंदुइज्म में आ गए तो हम इनको वोटर आईडी कार्ड, ये आधार कार्ड, ये सब है ना, ये करेंगे बोल के एक ड्रामा न्यूज़ में दिखा रहा था। वो टाइम में लोगों को समझ में नहीं आया, मैं तो हंस लिया था। ये तो बांग्लादेशी लोगों को, इंडिया वाले को वोटर आईडी कार्ड बनाने का क्या जरूरत है राजस्थान और जयपुर में, समझे? उसका तो पश्चिम बंगाल में रहेगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ ये वोटर आईडी कार्ड, ये सब यहाँ का डॉक्यूमेंट बना के देना बांग्लादेशी को। उन्होंने दिखाया वो रास्ता, जो घर वापसी बोल के। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ भी देख लीजिए, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं। वो पुनीत केरहಳ್ಳಿ जो दिखा रहा था ना, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು, कौन मना के दिया तुम्हारे को, ये बांग्लादेशी। क्विकली पुनीत केरहಳ್ಳಿ कौन से संगठन में? अभी वो इसमें हिंदू जन जागृति में है ना वो। जागृति में। हाँ तो वो फिलहाल वो बेंगलुरु के कुछ सिटी ये एरियाज में जाके बांग्लादेशी हाँ। करके 6-7 महीने पहले बहुत गलाटा करा। वो पूरा हल्ला करा ना, उसमें तो वो हिंदू कम्युनिटी के लिए हीरो बन गया। लेकिन उसे सवाल करने वाला ये, वो पूछ रहा है कि ये कहाँ से बना के दिया। वो तो बता रहा था ना, 1500 दिया, 4000 दिया, ये आईडी कार्ड बना के दिया। पुनीत केरहಳ್ಳಿ उधर नहीं जा रहा है, कौन बना के दिया है उसका तो एड्रेस वो बता रहा है ना, उधर नहीं जा रहा है। वहां जाने से मालूम हो जाएगा कौन बना है। अपना यदि बना के दिया है, जो वोट, अपना वोट बैंक के लिए वो लोग बना के दिए, वही राइट विंग, बहुत ही नहीं राइट विंग वाले ही बना के दिए हैं, वो कोई दूसरा नहीं, राइट विंग वाले बना के दिए हैं। आप FRRO में भी रिपोर्ट है कि बांग्लादेशी वोटर आईडी कार्ड बना के बांग्लादेशी लोग वोट किसको डालता था, यही बीजेपी नेता लोगों को डालता था। रेफ्यूजीज को वोटर आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट बना दे के वो लोग है ना, मेरे को ग्राउंड में मालूम हो रहा है कि वो बीजेपी को वोट देते हैं इलेक्शन के टाइम पे। 2 एजेंट लोग इधर लेकर के रखे हैं, उनके पास पूरा आता है, समझे? ये चीज़ बताया। बाद में अभी राहुल गांधी बता रहे हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। वही टाइम पे तो बोल रहे थे ना हम, वोट चोरी हो रहा है बोल के, तो हमारा बात वो टाइम पे कोई सुना नहीं। ये रियलिटी है। पश्चिम बंगाल का जितना लेबर है ना, वो यहाँ का वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया, क्योंकि उसे बंगाल से मोहब्बत है, बंगाल की ज़मीन से मोहब्बत है। वो सिर्फ कमाने के लिए आया है, वो उधर ही जाके बसना, उसका बुढ़ापा वो सब उधर ही है, उसको मेंटली प्रिपेयर होके आया, कोई यहाँ इसके लिए नहीं आया। तो ये चीज़ें रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी यही है। अभी देखो इलेक्शन है, कोई भी नहीं रहेगा, 1 और 2% रहेंगे। 3 लाख से ऊपर जो है पश्चिम बंगाल गया है मजदूर वोट डालने के लिए। मतलब बेंगलुरु में भी कोई नहीं है बोल रहे? नहीं है, बेंगलुरु में भी नहीं है। आप पूरी दिल्ली population चेक वोट कर डालने के लिए। लीजिए, दिल्ली, गुरुग्राम में सब तो ऑटो पकड़ के चले। मैं पूरा इंडिया फिरता हूँ, जहाँ जहाँ पश्चिम बंगाल के लेबर हैं वहाँ जाके मैं काम करता हूँ। उनका ज़्यादा वायलेशन उनके साथ ही होता है, पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ ही है ना, बांग्लादेशी बोल के उनको मारा जाता है, लिंचिंग होता है। देखिए ये सब पूरे लिंचिंग हैं। ये देखो, ये कमाने आया, एक ही लड़का था, ये इसको हैंग कर दिया गया और बोलते सुसाइड। सुसाइड ऐसा कोई करता है? उसका फ़ोन कहाँ है, उसके कपड़े कहाँ हैं, पैर के पास खून दिख रहा है ये, और ये करंट शॉक दे दे के माँ के सामने बच्चे को मार दिया जाता है। ये 20 दिन होता है, इसको हैंग कर दिया जाता लड़की के साथ गलत करके, कोई रिपोर्ट नहीं होता। कहाँ? बेंगलुरु में? बेंगलुरु में हुआ ये। FIR करने के टाइम पे पुलिस वाला उसकी माँ के पास 10,000 रुपये लिया है बेंगलुरु में, खाली FIR करने के लिए, हैंग सुसाइड केस बोल के। और आप उसका FIR चेक कर लीजिए, एज 18 डाला है, जबकि 17 उम्र है उसकी। लड़की सिर्फ 20 दिन हुआ बेंगलुरु को आके, समझे? जैस्मिन बोल के बेलंदूर पुलिस स्टेशन HSR लेआउट में वो ये हुआ था, FIR हुआ था। तो ये सब वायलेशन देखा तो मेरे को और इसमें ही लग गया मैं, समझे? तो ऐसा चीज़ हो रही है, गलत बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, पॉक्सो केसेस ज़्यादा हुए। चेक कर लीजिए, मजदूर के बच्चों के साथ पॉक्सो केस ज़्यादा हो के हैं। क्यों? क्योंकि प्रवासी मजदूर कहीं भी हो, सेफ्टी नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो थर्ड बोलते ना, नीचा हटा के अपना सिटीजन के हिसाब से उसको देखा ही नहीं जाता है, चाहे गुरुग्राम में हो। भाई ये जो अपने सिटीजन की तरह नहीं देखा जाता है, ये जो एक एक्सपीरियंस है। देखिए यूपी से भी लेबरर आ रहे हैं, बिहार से लेबरर आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से। यहाँ पे बेंगलोर जैसे एक बड़े शहर में, या फिर किसी भी इंडिया के किसी भी बड़े शहर में, ऑल ओवर इंडिया से, गांव से लोग आते हैं।
ये जो ट्रीटमेंट है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ बंगाली मुसलमान लोगों के साथ होता है कि सभी, क्योंकि जो इंसिडेंट्स आप बात कर रहे हैं वो उतने कॉमन नहीं है बाकी पॉपुलेशन में, जहाँ तक कि मेरे को मालूम है। नहीं लेबर वायलेशन का जब हम देखते, वायलेशन किस में होता, ग्रेचुइटी में होता, पीएफ में होता, सैलरी में होता, कोई चलो कहीं एक्सीडेंट में, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई लेबर गिर के मर गया तो कॉम्पनसेशन में क्या प्रॉब्लम होता। ये जो आप बात कर रहे हैं ये कुछ अलग तरीके का एक तरह का जुल्म है। इसका जो सिस्टम है आप किस तरह से समझते हैं इसको? देखिए, ये इंसान की ये सोच रहती है, बाहर का जो भी आता है वो कुछ कब्जा कर लेगा, बड़ा हो जाएगा, हमारा इनकम खा जाएगा, ऐसा बोल के एक सोच रहती है। उसमें ज़रा लोकल और बाहर वालों में डिफरेंसेस रहते हैं। वो लोकल बाहर से आके गाड़ी लिया तो भी थोड़ा परेशानी होती लोगों में, वो एकदम लो कैटेगरी के लोगों में रहते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो उससे क्या भी फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। पहले 98 में आप कारगुनहल्ली देख लेंगे तो तमिल मुस्लिम आके बसा उधर, बेकरी का काम करते थे, जाके दुकानों में वो मुरुक, बिस्किट, बादशाह ये सब है ना, वो बेकरी का आइटम ये करते थे। तब उधर ही एक मुस्लिम लीडर था कर्नूल में, वो पकड़-पकड़ के मार रहा था। आप समझे? एक तमिल मुस्लिम और उर्दू मुस्लिम के बीच में वो टाइम पे हो रहा था, क्योंकि ये लोग बढ़ जा रहा है बोल के। ये वो लोग बढ़ जा जेलस रहे तमिल मुस्लिम डेवलप हो रहा है, गाड़ी ले रहा है, ये ले रहा है, बिस्किट फैक्ट्री ओपन कर दिया, इसका बिस्किट तो पूरी जगह जा रहा है। तो वहाँ पे एक लीडर था, नाम नहीं लेना, मर गया आदमी, वो पकड़ के बहुत मार रहा था, बहुत पिटाई होती थी, समझे। उसके बाद वो चेंज हुआ, तो वो लोग एक यूनियन बनाया, वो एक चेंज हुआ। वैसे ही हर जगह देखता हूँ, देखिए वो हरियाणा में वो भैंस का गोश्त मिलता है। 2 बंगाली औरतें गुरुग्राम से वो गोश्त लेके आते थे, भैंस का गोश्त, समझे। उसको बीफ बोल के बजरंग दल वाले वो औरतों के नाखून निकालते कटिंग प्लेयर में। ऐसे ही तकलीफ होता होगा ना हमारे गौ माता को बोल के, अरे भाई तू चेक तो कर क्या है, वो तो ये है बफलो का मीट है, तुम कऊ मीट बोल के कैसा हरासमेंट कर। फिर जेल भी हुई है 2 औरतों को, नदिया के कचरा चुनने वाले। अभी कचरा चुनने वाले ये सब लोग गरीब लोग हैं ना, 800-1000 रुपये का गोश्त नहीं खा सकते भाई। वो 100 ग्राम में 20 रुपये में 100 ग्राम का गोश्त आता है, उसमें ही वो ये होते हैं, समझे। तो उनको इतना हरासमेंट हर जगह, वो ये इसके नाम पे ही लिंचिंग होता है। और जहाँ तक आप यूपी बिहार का लोग बोलते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर वो पान के बीड़े की दुकान में ऐसा रहता है। नहीं, कंस्ट्रक्शन में भी हाँ, है, कारपेंटर कंस्ट्रक्शन में में भी भी है, है, सभी है। लेबरर्स तो काफ़ी है। हाँ, सभी है। तो उनके साथ कभी-कभी कन्नड़ा माताडू बोल के उतना ही ये होता है, लेकिन उतना नहीं। जब बंगाली को देखता है ना, तो गोदी मीडिया बांग्लादेशी, बांग्लादेशी बोल के ये बोल दिया है ना, तो ये बंगाली को देखते ही बांग्लादेशी दिखता है उनको, समझे। इधर वो क्या आर भारत टीवी ये सब है ना, बांग्लादेशी नोड़ी। मेरे पश्चिम बंगाल के जोगियों में आके वो तुम कहाँ से हो, तो वो बोलता बंगाल से। क्या बात भाषा करते तो बंगला ही बोलेगा ना, नोट इधर बांग्लादेशी और ऐसा-ऐसा बोल के मेरा मुर्शिदाबाद के लोगों के पास माइक रख के, ये सब है ना मीडिया का भी हरासमेंट है। और कुछ गोदी मीडिया जाती है, पैसा लेती है, नहीं तो हम लाइव करेंगे। अरे गरीबों को डरा के पैसा लोगे, 30-30 हज़ार रुपये दिया है मजदूर इकट्ठा करके, हमारा एरिया को ये कर देगा तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, इविक्शन होगा, ये होगा बोल के। इतना मजदूर डरा होता है ना पश्चिम बंगाल का, खासकर वो कुछ ना कुछ क्या तिबिया किए होता है। हस्बैंड वाइफ लड़े तो उससे बड़ा इश्यू करा देते हैं। तो हर घर में भी तो होता है हस्बैंड वाइफ का लड़ाई। तो ये चीज़ें जो है पर्टिकुलर यही कम्युनिटी को टारगेट करके उसमें है ना ये किया जाता है। वो देखा जुल्म, गुरुग्राम में भी तोड़ दिए। रोहिणी में अगस्त का महीना 2025 में फर्स्ट झुग्गियों को जला दी जाती है रोहिणी में, समझे। जलाने के बाद उसमें बीरबम के 2 बच्चे, 4 साल का एक लड़का, 2 साल की लड़की, मज़दूर के बच्चे जल जाते हैं। जलने के बाद वो जो माँ है वो हमसे बात करती है, ऐसा-ऐसा हो गया भैया, ठीक है। तो वहाँ पे ग्राउंड एक्टिविस्ट थे धर्मेंद्र यादव बोल के, वो जाके वहाँ सर्विस कर रहे थे। मैं बोला धर्मेंद्र भाई थोड़ा खाने-पीने का इंतज़ाम कर दीजिए। पूरा सामान चला गया तो कहा ठीक है, वो इंतज़ाम किए। तो बीजेपी नई सरकार बनी थी तो एमएलए भी है ना कोई आके उधर खाना-गिना दिया। 2 दिन के बाद तीसरे दिन 500 से ज़्यादा पुलिस, वो औरत मेरे को घाबरे होके वीडियो कॉल में वीडियो दिखा रही है, देखो भैया इतना पुलिस क्यों आया, ये आया। बाद में मैं धर्मेंद्र भाई को फ़ोन किया,
यादव जी ये क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए ना, ऐसा लोग परेशान हैं, पैनिक हो रहा है वहाँ पे। तो वो बोले कि सर ऐसा है कि आजू बाजू अपार्टमेंट वाला है ना, ये बांग्लादेशी हैं बोल के कंप्लेंट किया है। तो एग्जैक्टली ऐसे बैंगलोर में हुआ था। हाँ, जेसीपी लेकर आके पूरा बुलडोज कर दिए, जेसीपी नहीं, लेकर ये के एग्जैक्ट पुलिस चीज बुलडोज देखो, की। आपको याद है वही मार्सली में हाँ, वो कौन सा साल था करीबन, 2018 जब दर्शना 2018 ये हाँ लेफ्ट से ये बिल्कुल। लोग सभी वहां पूरे पे बुलडोजर 20 ला गए थे। ऑर्गेनाइजेशन जो है, दलित ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे इकट्ठा होके खड़े। एंड सेम वहां पे जो मेन ट्रिगर उसका हुआ था, ये अपार्टमेंट वाले। हाँ अपार्टमेंट वाले बिल्कुल, बोले तो कौन, ये आईटी कंपनी हाँ वगैरह में काम करने वाले। वही हाँ, बड़े बड़े लंबे अपार्टमेंट में रहते हैं उन्होंने। एंड उनको क्या करते हो, हमारे घर के सामने सराउंडिंग में सभी कचरा कचरा है, कचरा नहीं रहना, प्रॉपर्टी का पार्क रेट रहना, नहीं आएगा। प्रॉपर्टी का रेट नहीं हमने हमने वो सभी दिखाई नहीं देना। ये आपको अभी हमें ये कास्ट अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी ये सभी बात करते नहीं, ये एक टाइप का एक माइंडसेट है खलीम भाई। हर जो जीने वाली चीज है वो अपना कचरा प्रोड्यूस करती है। हाँ, जो खाती है वो कचरा भी क्रिएट करना ही है। क्रिएट करते। बट ये सोसाइटी कैसा है तो उनको बस खाना दिखाई देता है, जो खाने का जो बाद में उसका जो अलग रूप निकलता वो किसी को नहीं देखना। वो कहाँ जाता कहीं तो भी जान दे, मैं देखता भी नहीं उसको। 1 सेकंड में 2 मिनट में करो, 1 सेकंड में फ्लैश करो, उसके बाद उसके साथ कौन भी क्या भी करता है मुझको उसका कोई ताल्लुक कंडीशन का कनेक्शन नहीं है करके एक माइंडसेट है। बिल्कुल, थोड़ा ये लोग पढ़े लिखे लोग है ना, थोड़ा गहराई में देखे वो गरीबों के तरफ। जब कोरोना था, लॉकडाउन था, कोई बाहर नहीं निकलता था, तो कोरोना के टाइम पे कोई बीमारी लगने के पूरे चांसेस थे। तो तुम्हारे घर के पास आके यही बंगाली मजदूर कचरा उठाता है, लेके जाके अपने घर के सामने डाल लेके वो कचरा पाक करके वो सेग्रेट करके ये करता है। तो ये चीज़ें सब वो टाइम पे नहीं दिखे। और एक बात बोलूँ, पूरे इंडिया में पश्चिम बंगाल का ही मजदूर कोविड के टाइम पे ये विक्टोरिया हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी, पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड नहीं था, पूरा ड्राई हो गया था। कई औरतें, प्रेग्नेंट औरतें डेथ हुआ है कोरोना के टाइम पे, वानी विलास में चेक कर लीजिए, बच्चे मरे इंदिरा गांधी में, खून नहीं है कहीं भी, ब्लड बैंक पूरा ड्राई हो गया। तब जाके पहला यही हमारा पश्चिम बंगाल का मजदूर, जिसे है ना नेग्लेक्ट करके ये कर देखा जाता है, वो मजदूर है ना खून दिया, ब्लड डोनेशन दिया पूरा जोगी। वो लोग बोले अजीम प्रेम जी तो हमें राशन दिए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना खून तो दे सकते हैं जानें बचाने के लिए। वही इंदिरा गांधी का डॉक्टर जो है वो मीडिया में स्टेटमेंट है, 100 बच्चों की जान बची ये जोगियों में से, समझे। वो तो दलित का भी खून था, प्रवासी मजदूर का, मुस्लिम का भी खून था। जब खून लेने के टाइम पे है ना, कोई ब्राह्मण नहीं बोलता है कि मेरे को वो खून नहीं चाहिए, कोई सनातनी नहीं बोलता है कि मेरे को दलित का खून नहीं चाहिए, कोई मुसलमान का खून नहीं चाहिए, समझे। जब अपना फ़ायदा है तो सबका भी खून चाहिए, समझे। जब अपना नफ़रत फैलाना है तो पूरा नफ़रत और जुल्म पूरा ढाएंगे मार्जिनलाइज कम्युनिटी के ऊपर। तो ये इंसानियत की सच्चाई है, उतना दूसरा क्या भी नहीं। दिल में जो नफ़रत लेके फिरते हैं ना, उसका ये बवाल। आप अब ये ब्लड डोनेशन का बात करें, वो टाइम पे बॉडीज भी उठाए ना। हाँ बिल्कुल, बॉडीज खुद अपने फैमिली का, अपने बाप के, अपने बच्चे का कौन भी बॉडी छूरा नहीं वो टाइम पे। नहीं उठा रहा वो था, टाइम पे माइग्रेंट वर्कर्स या बंगाली वर्कर्स आके बॉडी उठाए। वो भी उठाए नहीं, कोविड बट में। सलीम भाई एक पॉइंट हमारा जरा मिस हो गया। आप जरा बोले, फिर वो कंप्लीट नहीं करे। आप बोल रहे थे कि किस तरह से, फॉर एग्जांपल, आप ये जो बंगाली माइग्रेंट लेबर का जो कंडीशन है, मुस्लिम लेबर का जो कंडीशन है, उसको आप ये तमिल मुस्लिम के साथ कंपेयर करें। तो जैसे बोले, मेरे को भी लगा कि हाँ, ये देखो किस तरह से हर एक जमाने में एक नया बेजुबान कम्युनिटी पैदा होता है। एक टाइम पे वो तमिल मुस्लिम और ये लोग सभी आके ये काम कर रहे थे। या फिर फॉर एग्जांपल मादिगा लोग जो हैं, मादिगा लोग, अरुंधतीर लोग अपना यूनियन क्रिएट किए रेगुलराइजेशन के लिए, सैनिटेशन वर्कर्स के रेगुलराइजेशन के लिए फाइट करे। अभी हमारे जो दू सरस्वती, क्लिफ्टन, ये लोग सभी जितने लोगों को 12,000 लोगों को रेगुलराइज करे। ये रेगुलराइजेशन का प्रोसेस, ये उनका जो इनफॉर्मल जो था उसको फॉर्मल करने में लास्ट एक 20-25 साल में बहुत उसमें पोराटम सभी हुआ वो टाइम पे। जिसके वजह से मेरे को लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, उनको लगा भाई इनको काम पे रखेंगे, इनको ये तो हमको तो बेजुबान लोग होना है यहाँ, इन्हों तो जुबान वाले हैं, इतनी लंबी लंबी जुबान है, उनका राइट्स के बारे में सभी बात करते हैं नो, हमने कौन तो भी दूसरा कौन तो भी होना गुलाम हमको करके बोल को इनको ले लेकर आए नो, राइट। ये मेरे को लग रहा है कि इसका मेन रूट है कि सबसे बेजुबान पॉपुलेशन अभी कौन है, जो अपने आईडी कार्ड के सवालों से डरता है, जो वो मेरे को लगता है आज की तारीख में ऑल ओवर इंडिया में सबसे परसिक्यूटेड बोलो, जो एक डेंजरस लाइफ जो जी रहा है, जिसको आईडी कार्ड के सवाल के जवाब में जिसको फड़फड़ होता है,
वो आज का सही में एक तरह का एक नया दलित ही पैदा हो गया सलीम भाई। बिल्कुल। देखिए पहले दलित लोग ये करते थे, बाद में दलित मेहनत किया, वो टट्टी भी उठाया, सब है ना बेइज्जती भी सहा, सब करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया दलित। रिजर्वेशन, बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी थी वो अवेयरनेस बच्चों में आया, तब एक कम्युनिटी है ना सर उठा दी। अब रहा बंगाली मुस्लिम, वो तो खेती ख़त्म होने के बाद एक्चुअली अब देखिए, अभी मैं तमिल मुस्लिम उर्दू मुस्लिम का बोला ना, ये तमिल मुस्लिम कौन है? ये सब कन्वर्टेड है, समझे ना, ये सब दलित थे। सेम बंगाली मुस्लिम का स्टोरी भी हाँ, वही है। वो भी सेम उन्होंने वो टाइम पे अपने अशरफ सैयद हाँ, मुस्लिम नहीं है वो। नहीं पसमानदा मुस्लिम ऑल आर कन्वर्टेड। यहाँ के दलित थे वो कन्वर्ट हुए, क्योंकि उनको इतना सताया जाता वो टाइम पे, कुछ ज़ोर से आवाज़ करने से, कुछ ज़्यादा प्रश्न करने से, उनके गरम गरम तेल कान में डाला जाता है, तो वो हरासमेंट, औरतों को कपड़े नहीं पहनना, केरला में जैसा ये था, ये सब हर तरफ पुराना अगर ब्लैक डेज देखें तो पूरा एकदम अंधेरा था। वो ऊपर वाले का कर्म है कि इधर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग आए, सब है ना अवेयरनेस क्रिएट किया, उनको राइट्स दिलाया, गुलामी से आज़ाद करे, वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही वो आज़ाद हुए। अगर ये बांग्लादेशी में जो चल रहा है ना इश्यू, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बांग्लादेश में है तो वहाँ भी इक्वल राइट्स होता था। वो लोग इतना सफ़र, इतना गिरे हुए क्यों हैं? वो क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कोई धर्म के नाम पे कोई देश नहीं चल सकता। नहीं, आप ये बात बोल रहे तो मैं इसको एक जरा ऐड कर लेता हूँ मैं। आप एंड ये बात आप जानते भी हैं, काफी बार यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात किए हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के शागिर्द थे। वो जाके जब बाबा साहेब अम्बेडकर इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बने, वो आके पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने। जी, वो एक दलित थे बंगाल से, जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। एंड उनका पूरा प्रोजेक्ट क्या था कि ये जो चाशा बोले तो आप जानते हैं, जो ये करने वाला, कल्टीवेट करने वाला, हाँ, चाशा जोलाहा बोलते हैं, मतलब छोटे लोग। यही जोला मुस्लिम कम्युनिटी में भी है, तेली भी है मुस्लिम कम्युनिटी में, समझे। यूपी में आपको वो ज़्यादा दिखने में रहेगा। वो अपर कैश अशरफिया मुस्लिम अलग है, ये तेली सब ये है। तबलीग जमात का जब सिलेक्शन का ये हुआ, तेली मुसलमान है रहमतुल्लाह साहब, वो तेली जात से हैं बोल के उनको बड़ा बनने नहीं दिया तबलीग जमात में। ये चीज़ें सब हमने पहले से ही देखते आए हैं। सैयद और शेख जो खान है, यही चीज़ पर है ना पॉपुलैरिटी दी जाती है, जबकि इस्लाम में वो नहीं है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल का प्रोजेक्ट क्या था कि दलित मुस्लिम और दलित हिंदू उन्होंने को ये अशरफिया मुस्लिम और भद्रलोक हिंदू के इसमें जरा दूरी मेंटेन करना, अपना खुद का एक अलग एक कोर्स क्रिएट करना करके उन्होंने गए वहाँ। अब बाकी स्टोरी आपको मालूम है? नहीं, हाँ मालूम है। फिर वो वापस आए, दिल टूट के उनका, क्योंकि जिन्ना मर गए। हाँ बिल्कुल, जिन्ना वो प्रॉमिस करे थे कहते, तो ये इनको मैं एक वहाँ पे भी एक अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी करा कर दे दूं करके, बट नहीं करे, उन्हें मर गए, 6 महीने में मर जाते करते। एंड दिस मैन वापस आके वेस्ट बंगाल में काम करते हैं। अभी एक बात क्या कहते हो खलीम भाई, आप नोटिस कर रहेंगे, आप तो ऑल ओवर इंडिया में घूमे, अलग अलग मूवमेंट्स देख रहे हैं, आप NRC में भी गए, आप अलग अलग मूवमेंट्स को आप देख चुके हैं पोस्ट 2014। बंगाल में देखिए एंटी कास्ट मूवमेंट कुछ भी नहीं है, एंटी कास्ट मूवमेंट नहीं है वहाँ पे। तो उस दोनों फैक्टर में अभी देखो, ये तरफ हम लोग, ये सीरीज का नाम है एपार बांग्ला एपार ओपार, दोनों तरफ में भी जो ऑपरेशन है या फिर जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कास्ट की वजह से हो रहा है। जो बांग्लादेश क्रिएशन हुआ वो भी एक तरह से बोलते हैं कि नहीं वो उर्दू मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम, अगर हम सही में हिस्ट्री देखेंगे, नहीं, वो अशरफ मुस्लिम और दलित मुस्लिम के बीच में फाइट हुआ। बिल्कुल, लेकिन जाति का वो सरनेम आज भी बंगाली मुस्लिम है ना फॉलो करता है, जैसा रफीकुल विश्वास, हाँ, वो विश्वास, हाँ, हम केस के साथ डील कर रहे हैं। इस्लाम मंडल, समझे। जरा कुछ मैं देखा कि वो बहुत आदिवासी रिमोट एरिया में रहते ना, तो वो आदिवासी कल्चर जैसे मैं मुस्लिम को भी उधर देखा है, जिसका नाम पीटर शेख। पीटर तो ये नहीं, मैं पूछा पीटर कैसा नाम हो गया मुस्लिम का, पीटर शेख कैसा हो गया? तो बोलता कि वो टाइम पे जो है ना अमिताभ बच्चन का फिल्म था पीटर बोल के, वो उसमें वो नाम अमिताभ बच्चन का एक्शन अच्छा दिखा तो मेरा मामा ये रखा। तो ऐसे भी हैं, कितने सारे नाम हम देख रहे हैं, बहुत सारे हैं। रूबेल है, ये देखिए, ये रासल शेख है जिसका मर्डर हुआ है ना, उसका नाम रासल शेख है, लड़के का रासल शेख। रासल कहीं भी है ना वो मुस्लिम में नहीं है। और ब्यूटी खातून देखा मैंने नाम, अजब अजब नाम, वो अलग टाइप है। एंड उससे क्या पता चलता है कि एंड ये नाम का जो कन्वेंशन है खलीम भाई, इसमें देखो कल्चर कैसा मैच होता। एक तरफ वो बोलता कि मैं हिंदू रहे तो मुस्लिम रहे,
लेकिन जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर, दलित, मुस्लिम, हिंदू जो लोग आ रहे हैं, उनके नाम भी ऐसे डिजाइन के नाम रखते हैं उन्होंने। तो उसमें एक बिल्कुल कनेक्शन है, उसका उसका उसे क्या मालूम पड़ता नाम। ज्यादातर जो कम्युनिटीज हैं दुनिया भर में, आप देखो नाम आपको हमेशा अपने रसूल का नाम रखते हैं, अपने रसूल का नाम रखते हैं मोहम्मद ये वो हाँ सही बात नहीं है। का तो अपने किसी तो भी अपने मूसा रखते हैं, ये सब कौन रखते तो भी हैं। रहते हैं, अपने रिलीजियस नाम ना रख लेते हैं उन्होंने। ऐसा ये क्या ब्यूटी खातून, हाँ मुर्शिदाबाद में अमतला गांव है, वहाँ पे एक लेक्चरर है, मेरा दोस्त है, उसका नाम हिटलर शेख। आप बताओ, मुस्लिम है, हिटलर रखा। और धंधे है, वो प्रॉफिट मोहम्मद का चाचा था, वो तो इस्लाम को और मुस्लिम्स को बहुत तकलीफ दिया था। उसका नाम अबू जहल। अबू जहल का मतलब जहालत का बाप, अबू मतलब बाप। तो वो नाम भी मैं देखा, समझे, चांद घर के तरफ है ना अबू जहल नाम, बाकायदा वोटर आईडी कार्ड तो भी है। करीम भाई, कितनी कितनी इंटरेस्टिंग बात है, दोनों तरफ के जो भद्रलोक और अशरफ लोग हैं, कितना कोशिश करे इन लोगों को एक बॉक्स में डालने की कोशिश करे। तू मुस्लिम रहे तो ऐसा रहना रहे, तू हिंदू रहे तो ऐसा रहना है। और इन लोग अपनी जिंदगी कितनी खूबसूरती से अपना जो स्टाइल है अपना जी रहे, वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी के अंदर उतना भी डिफाइन नहीं हो रहा करके नाम आपको ऐसा ब्यूटी गीटी रख लेता नहीं उन्हें। हाँ हाँ। और एक मैं बंगाली मुस्लिम में ये देखा कि वो रिलीजियस के बेस में वो सब वोट नहीं देते हैं, समझे। ये आजकल है ना, ये बीजेपी राइट विंग है ना, उधर नफरत फैला फैला के ये कर दिया है। अभी मिसाल के तौर पर जो है ना, प्रवासी मजदूर जैसा है, वहाँ प्रवासी एमपी भी देखा मैं। ये यूसुफ पठान कौन है, वो तो गुजरात का, बंगाली नहीं है, फिर भी वोट दे के जिताया ना लोग। तो वो चीज़ वो लोग देखता नहीं, हिंदू मुस्लिम है। अधीर रंजन चौधरी को भी जिताया, पूरा मुस्लिम बेल्ट था, जिताया बाकायदा। तो ये चीज़ है ना, वो ये नहीं, जहाँ जितने भी वहाँ पे देख लीजिए, मुस्लिम बेल्ट से ही नॉन मुस्लिम्स जीत के आते हैं। तो वो एक चीज़ है। और ये ने क्या है, अबू ताहिर खान, वो तो 2012 से मेरा दोस्त, जब कांग्रेस में था तब से ही मेरा दोस्त है। आज एमपी है टीएमसी का, टीएमसी मुर्शिदाबाद का अबू ताहिर खान। वहाँ तो खान कमटी कम है, वहाँ तो मंडल है, पसमंदा तक ये है ना, वो ज़्यादा है, विश्वास है। उसमें एक और तरफ का पॉलिटिक्स है करीम भाई। हाँ जो पावरफुल है उसी को पावर बाद में मिलता है वहाँ। हाँ हाँ कितनी छोटी माइनॉरिटी है वहाँ पे अशरफ। देखो मुस्लिम बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है हाँ। वेस्ट बंगाल में ही। वेस्ट बंगाल आप में बांग्लादेश होते छोड़ डालो, बंगाली मुस्लिम आके कितना 23-27% है करीम भाई। हाँ बिल्कुल, और उसमें ये अशरफ या उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत कम, रत्ती क्या 1-2% बहुत कम। तो वही मैं देखे तो एमएलए एमपी पोजीशन, मिनिस्टर पोजीशन में सभी देखे। वो सब अभी डालू मियाँ, अबू हाशिम खान, जस्ट रिसेंट लास्ट मंथ उनका डेथ भी हुआ। ईशा खान उनका बेटा है। तो खान लोगों को भी वो लोग देता है, ये नहीं देखता कि अपना बरादरी मंडली होना, विश्वासी होना, ये होना बोल के, ऐसा नहीं है, वो लोग देता। तो उस मामले में वो 100% दलित बिल्कुल है लोग। फ्री माइंड। नहीं, उस मामले में 100% दलित है। वो दलित ने सुनका जो है कि भाई जो हम पे जुल्म करता है, जो हम पे जुल्म करता है, घूम के आके इलेक्शन के टाइम पे उसी को वोट देंगे हम, ये हमारी फितरत है करके। बट करीम भाई, हमें जरा वापस बेंगलुरु को आएंगे। मैं वापस बंगाल में फिर से जाएंगे हम, क्योंकि आप रिसेंटली वहाँ जाके देख के आए। एंड रिसेंट का जो सिचुएशन है बहुत खराब है वहाँ में, हमें न्यूज़ में से भी देखे। तो आप जो आंखों देखा, जो आपका जो वहाँ तजुर्बा है, उसके बारे में बोलो। बट फिलहाल फटाफट हम क्या करेंगे बोलो तो, ये बैंगलोर का जो ये एक सिस्टम है, जिस तरह से इनके ऊपर ये 1 का 10 के हिसाब में जो पैसे उठा ले रहे हैं इनके लेबर के ऊपर से, इसके बारे में जरा फटफट डिस्कस कर लेंगे। जो गार्बेज सेक्टर है कलीम, हाँ, गार्बेज सेक्टर में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसको जो मजदूर है उसके तरफ से देखेंगे तो लगता है भाई ये क्या कचरे का काम है करके। बट ये कचरे को सोना बनाने का एक सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। गार्बेज माफिया है बेंगलुरु। बिल्कुल, गार्बेज माफिया बेंगलुरु के अंदर है। डीके शिव कुमार बोला जो इसमें असेंबली में, गार्बेज माफिया तो बिल्कुल है। एंड ये कंट्रोल किसके, इसमें देखो लेबरर्स जो बेजुबान लोगों की बात करें हम, कभी तमिल मुसलमान आता, कभी दलित आता, कभी इन्हें आता, कभी उन्हें आता। कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री जो है, गार्बेज इंडस्ट्री जो है, उसको आज तक वोच गौड़ा नहीं कहते रेड्डी कंट्रोल कराना खलीम उसको, मोस्टली रेड्डीज इज कंट्रोल करना। एंड ये आकर चेंज नहीं हुआ, 50 साल में भी चेंज नहीं हुआ। वो कैसा, देखिए रेड्डीज आंध्रा से आए, तो ये जो गार्बेज है ना, दलित लोगों को लेकर आए, काम पे रखे, तो कॉन्ट्रैक्ट इनके अंडर में ही था। जैसा आनंद रेड्डी है, ये सब अभी भी वही लोग हैं। अभी क्या है, वो ट्रेंड चेंज हुआ, बोला ना मैं, नया जनरेशन जो है पढ़ा लिखा हो गया, तो अपने जॉबों में चले गए। अभी ये पश्चिम बंगाल के जो है कन्वर्टेड मुस्लिम, दलित लोगों कन्वर्ट हुए मुस्लिम, वो लोग आके यही काम,
क्योंकि इनको पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलती है, समझे। ये सब इसका अगर एक ही हल क्या है, मालूम, आज ये गरीबी ख़त्म होना है तो 1962 कोतारी कमीशन एक्ट अगर गवर्नमेंट लागू कर दे, फ्री एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन, तो ये सब खत्म हो जाएगा। बट कम्युनलिज्म कहाँ जाएगा? एजुकेट हो गए तो देखो, अभी एजुकेटेड मुस्लिम भी ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में वो रूलिंग में है करके, नहीं, बट इन लेबरर्स का मेन एक आई थिंक एक्सप्लॉयटेशन पॉइंट है कि उनका एक जो मजहब है और उनका जहाँ से आते हो कि आराम से उनको बांग्लादेशी करार कर सकते हैं उनको। बांग्लादेशी आए कैसा है, मैं वो भी बोलता हूँ। देखिए, बांग्लादेशी कुछ लोग पहले इधर आया, पहले बांग्लादेशी में 3 कैटेगरी है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, टाइम है आपके पास। फर्स्ट जो 1970 में जो ये हुआ, वार हुआ, तब बहुत सारा बांग्लादेशी मुस्लिम है ना, उसको बांग्लादेश में रहना पसंद नहीं हुआ। वो आया दिल्ली में, जहांगीरपुर, ये सब सीमापुरी, इधर सब आके बसा। वो बांग्लादेशी, वो बंगाली बात करता है। तो इंदिरा गांधी, वो टाइम पे संजय गांधी है ना, फैमिली प्लानिंग का ये लाया था। तो इंडियन मुस्लिम तो अवॉइड किया उसको, फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। तो ये पूरा फार्मूला एक्सेप्ट किया वो बांग्लादेशी मुस्लिम। तो 2030 साइट भी गवर्नमेंट से दे दिया गया इंदिरा गांधी के पीरियड में ही। तो वहाँ के पूरे ये मिल गए, सिटीजनशिप मिल गए, वोट डालते थे। फिर वो लोग बीजेपी को भी वोट डालते थे काफ़ी इसमें। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद जो है, वहाँ से दिल्ली से थोड़ा थोड़ा लोग पूरे इंडिया में फैल गए, उनके बच्चे लोग, दूसरा सिटी भी है, वहाँ जाके कमाएंगे, यही कचरे का काम करते हैं। वो जो आया था वहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिम, वो दूसरा कुछ भी काम नहीं किया। वो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी इधर सब है ना, वो सब बिल्डर ये सब नहीं बना है, वो सिर्फ कचरे का ही। तो उसमें ही ज़िंदगी चल रही थी। अभी 3rd जनरेशन है। अभी 3rd जनरेशन दिल्ली का आईडी कार्ड देखेंगे, बंगाली बात करेगा तो उसको बांग्लादेशी बोलना, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। और सेकंड कैटेगरी जो है, कुछ बांग्लादेशी लोग जो है अपना भूखमरी की वजह से बॉर्डर पार करके आते हैं। तो हमने देखा कि वो 20-20 हज़ार रुपये, ऐसा 10 हज़ार ऐसा दे के, रिश्वत दे के आते हैं एजेंट लोगों को। तो एजेंट लोग इधर लेके आते हैं, वो एक कमाने। वो कैसा आते हैं, पहले इधर बड़ा बड़ा मॉल बिल्डिंगों के पास फ़ोटो करके ये भेजते हैं। ये कब हुआ? स्मार्टफोन आने के बाद ही आया बांग्लादेशी लोग, उससे पहले नहीं था। तो ये आके देने के बाद वो समझते हैं कि जैसा हम लोग इंडिया वाला सऊदी में जाता है तो बड़ा बड़ा ये रहेगा, शॉपिंग मॉल में काम। बाद में देखे तो रेत में, रेगिस्तान में है ना, बकरा ऊँट चराने के डाल देता है। वैसा इधर है ना, वो जॉब के लिए आते, मॉल में जॉब मिलेगा ऐसा था बोल के। उसके बाद कचरे के ढेर में डाल देते, इधर ही रहना, बाहर गए तो जय श्री राम बोल के मार देंगे। फिर न तो पुलिस पकड़ लेगी बांग्लादेशी बोल के, डर में वो गुलाम बना के, बॉन्डेड लेबर बना के रखते। और उनको कुछ भी नहीं दिया था। ये प्लास्टिक का बॉटल है ना, इसमें जो कितना तोल के आएगा वो पैसा में उनका जीवन होना, ये 5-6 हज़ार पैसा देगा। जबकि कानून के हिसाब से लेबर का जो सैलरी है वो नहीं देता। और इसका ये ग्राउंड में चेक करने की वजह मैं फर्स्ट बोलूँगा कि लेबर डिपार्टमेंट की। लेबर डिपार्टमेंट खाली ऑफिस में बैठ के सैलरी लेना नहीं है तुम्हारे पास। तुम एक टीम जाना, जैसा पुलिस को मालूम है कहाँ कहाँ बांग्लादेशी है, कहाँ कहाँ पश्चिम बंगाल का लोग है। लेबर डिपार्टमेंट भी ग्राउंड में आना। जब बच्चों का पॉक्सो केस होता है झुग्गियों में, चाइल्ड राइट कमीशन नहीं आता, वो लोग भी नहीं आता। वही तो वुमेन्स कमीशन, औरतों का रेप हुआ कौन सी जगह, वुमेन्स कमीशन इमीडिएट उतरना, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि स्टाफ कम है, वो भी मैं मानता हूँ, क्योंकि सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती। जब स्टाफ ज़्यादा रहे तो ना, ग्राउंड में जैसा एक्टिविस्ट है, ऑफिस में एक्टिविस्ट रहता है, वैसा अलग अलग काम बांट के करेंगे, तो ये एक दिक्कत है। नहीं भाई, मेरे को बताओ, ये इंडस्ट्री में इतना सभी उनको एक तरह जानवरों की तरह लेके आके कहीं बांध के, एक जोगी में उनको बांध के वहां पे कचरा उठाना होकर को काम देते हैं उनको। लेकिन ये लोग जो काम पे रखते हैं इनको, वो लोग कितना पैसा बनाते हैं, कि इसमें कितना पैसा है, ये इंडस्ट्री में कितना पैसा है? जरा हमारे ऑडियंस को जरा एक आइडिया दो खलील भाई, कितना, क्या हम लाखों की बात कर रहे हैं, हजारों की बात कर रहे हैं, कि और भी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है? एक चीज तो मैं जानता हूँ कि जो बीबीएमपी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आके एज पर लेबर राइट कन्वेंशन जो है, उसके हिसाब से सैलरी फिक्स होता है। अभी घर के सामने जो वो टिपर ऑटो में आते, वो ड्राइवर को एक फिक्स्ड सैलरी रहता, पीछे ऑटो के पीछे जो एक हेल्पर रहता उसको एक फिक्स्ड सैलरी रहता, डंपिंग यार्ड में जो लोग काम कर लेते उनका दूसरा एक फिक्स्ड ये रहता। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी एक ड्राइवर को कितना 24,000 है, 24,000 है, 24,000 है, लेकिन उन्होंने कितना देते हैं? 4,000। कचरा उठाने वाले को 12,000 था वो टाइम पे, तो 10,000 देते, 2,000 ये मार देते।
नहीं समझे? वो तो पहले वो पहले। पहले अभी तो बंगाली मुस्लिम का जब बात करते हैं वही 18,000, अभी 12,000 नहीं है, मैं जब चेक 18,000 करा 18,000 था, अभी लेटेस्ट आके 22 की 20 कुछ तो हुआ है। देते कितने 6,000 6,000 8,000 8,000 ऐसा ऐसा देते हैं, देते। समझे? तो वो वो ज़्यादा एक लेवल ऑफ एक पैसा है, मतलब सोचो बेंगलुरु में कितने एक 1 लाख कितना की है, जितना कॉन्ट्रैक्टर जो एज पर बीबीएमपी के रिकॉर्ड्स है उतने लेबरर्स इनटू इतना अमाउंट, बोले तो 60 to 70% वहां से उसका सैलरी वो मार ले रहा हो। मैं एक मिसाल दिया कि फॉर एग्जांपल पर लेबरर 10 से 12 से 15,000 रुपए एक कॉन्ट्रैक्टर बना ले रहा, उसको सैलरी नहीं देके। आराम से। उसको क्या बोल रहा, ये जो कचरा तू उठाया नहीं, ये कचरा देखो कहाँ तो भी चुन ले तू, प्लास्टिक अलग कर, ये अलग कर, बेच ले, खा ले करके बोलता हूँ मैं। वही। बट मेरे को ओवरऑल इंडस्ट्री का जरा एक आइडिया बोलो कि नहीं 10-10 साल से मैं दिखाता हूँ, बंगाली मजदूर 10-10 साल से बीबीएमपी का काम करते हैं, 1 रुपया सैलरी नहीं मिला है। ऐसे लोग भी हैं। वो 2018 में ही 10 साल के बेच के खा लेना हो। हाँ, एक ये मिला था नदिया का, वो ये किया था तो उसको कचरा उठाने भी नहीं दिया, वो मीडिया में बोल दिया था 10 साल से मेरी सैलरी नहीं आई। वैसा एक आदमी नहीं है, वैसा तो बहुत सारे हैं, समझे? बेंगलुरु के अंदर बहुत सारे मजदूर हैं जो ये वैसे ही सेम गुरुग्राम भी देखा, वहाँ भी सेम पैटर्न है, कोई 1 रुपया नहीं मिलता है, वही प्लास्टिक बॉटल चुन के उसमें प्लास्टिक है, ये कांच है, उसमें जीवन करनापन की उनको सैलरी नहीं, पूरा खा जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग। तो वो एक सोर्स ऑफ मनी है। अभी एक सोर्स ऑफ मनी क्या है कलीम भाई इसमें? और एक चीज़ क्या है, हाँ, ईपीआर फंड बोल के अभी ये कंपनी है बिस्लेरी इंडिपेंडेंस कंपनी, ये ईयरली है ना ईपीआर फंड निकालना, क्योंकि ज़मीन में जब डालते हैं तो इसे उठाने के लिए पैसा देना, समझे? जैसा लेस की पैकेट हो जाए, जितने कंपनी हैं, जितने चीज़ें ज़मीन में फेंकी जाती हैं उसे उठाने के लिए ईपीआर फंड कंपनी देना। तो वो ईपीआर फंड कहाँ जाता? यही बड़ा स्कैम कहाँ जाता देखिए आप। नहीं उसका ये गार्बेज से क्या कनेक्शन है? वही ईपीआर फंड देता है ना, किसको देता वो? एनजीओ को देता। बिल्कुल, ई वेस्टेज जो एनजीओ रजिस्टर करके आते हैं उनके जाता है। तो वो एनजीओ क्या है, सब जगह बंटवारा करते हो चीज़ों का। तो यही तो गार्बेज माफिया है भाई। मेरा बंगाली मजदूर कचरा चुनता है, तुम्हारा लेस का पैकेट उठाता है, तुम अगर ईपीआर का फंड बराबर उसके ई श्रम कार्ड में अकाउंट नंबर ना उधर दे दो ना, उनका एक कार्ड बनाओ अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट से, कि ये है ना कचरा चुनने वाला रैक पिकर मजदूर है बीबीएमपी में, ये कचरा उठाता है, तो उसका एक अलग डिटेल्स है डायरेक्ट। इसमें कोई एनजीओ आने का जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आने का, गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले, समझे? यही चीज़ पर है ना महुआ मित्रा को मैं फ़ोन किया था, और ज़्यादा नदिया डिस्ट्रिक्ट से आते एमपी है, तो वो आवाज़ पार्लियामेंट में उठाए, कुछ पॉलिसी ये बने तब जाके कुछ गरीबों का ये होगा। नहीं तो मैं जिस दिन से 10 साल से 15 साल से जो मजदूर देख रहा हूँ वो वही कचरा उठा के जी रहा है, उसके बाद उसका बच्चा भी वही रास्ते में फॉलो हो रहा है, क्योंकि बचपन से वो माँ अलग करती ना, तो वो बच्चा भी वही सीखता है अलग करने का, कांच अलग करो, प्लास्टिक अलग करो। इसमें तो एक कम्युनिटी को जो है आप गुलाम ही रखना चाहते हो। जो कानून तो है, फैसिलिटी है, पॉलिसी है, उसको वो फ़ायदा है ना वो मजदूर और उसके बच्चे, उसका बीवी तक नहीं जाना, समझे? ये चीज़ें है ना ग्राउंड रियलिटी है, इस तो पे एक कोई तरफ डिस्कस से नहीं आप करता। बोल रहे हैं कि जो बीबीएमपी के कॉन्ट्रैक्टर्स है वो पैसा बना रहे हैं, एक तरफ एनजीओज जो बड़े बड़े कंपनीज का ईपीआर का प्रोजेक्ट बिल्कुल। भी इम्प्लीमेंट करते हैं वो पैसा बनाते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स करीम भाई, इनका भी बहुत मतलब एक एक पर हेड का होता हो उनका हाँ, कमीशन ये सब। ये जो आप जो बोल रहे हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो ठेकेदार लेके आते हैं, वो एक हेड पे इतना नफ़ा कमाते हैं, क्योंकि उनका अच्छा बुरा सब देखना पड़ता है उसको। लेकिन है ना ये, हाँ, इसमें गार्बेज गार्बेज में नहीं है, गार्बेज में डायरेक्ट तो लूटी होती है। वो तो अनपढ़ आदमी है, उसे क्या भी मालूम नहीं, उसको डरा डरा के इधर रखा जाता है, समझे? ज़्यादातर बांग्लादेशी लोग ही गार्बेज ये करते हैं। हमने ये पूरा जो कितने बांग्लादेशी हैं पूरा एफआरआर ऑफिस में सबका डिटेल रहता है, और हर पुलिस स्टेशन को मालूम होता है कि ये एरिया में कितने बांग्लादेशी हैं। अगर नहीं मालूम है तो पुलिस भी बेकार है, एफआरआर भी बेकार है, ये लोगों को सब नॉलेज है। लेकिन हमने डिस्कस किया, ये लोगों को पहले भेजिए, वरना क्या होता है पश्चिम बंगाल के मजदूरों पर अटैक ज़्यादा हो रहा है, समझे? मीडिया कुछ दिखा रही है बांग्लादेशी है, वो छमस शेख बोल के वो रिक्शा लेके जाता है, और बेंगलुरु जो मैं है खुल के बताता हूँ, वो रिक्शा लेके जाता है। अभी वो न्यूज़ में यूट्यूब में देखता है,
बांग्लादेशी बांग्लादेशी, उसको दिखाता है वही रिक्शा उठा के कचरा चुनने वाला बांग्लादेशी, वो तो मेरा पश्चिम बंगाल का वो लोग भी करता है। तब जाके उसके ऊपर लिंचिंग होती है। वो ऐसा रेलवे ट्रैक उनके पास ही क्यों बंगाली की लाश ज़्यादा मिलती भाई? हाँ, ये देखिए, ये बंदा समझे मार दिया जाता है, मार के रेलवे ट्रैक के पास डाल देते हैं, समझे? कितने हैं रेलवे ट्रैक में ही क्यों हो रहा है? ये चीज़ें सब है ना, ग्राउंड रियलिटी है। वो मरने के पहले बोलता भी है कि मेरे को 4 लोग मिलके मारा है, ऐसा बोल के बंगाली में बोलता है। फिर बोरिंग हॉस्पिटल लेके जाते तो डेथ हो जाती है। और मैं काडगुआ क्या कोड़गीहल्ली पुलिस स्टेशन है ना, एक्सीडेंट केस लिख दिया। मैं पूछा इंस्पेक्टर को, एक्सीडेंट केस है तो थोड़ा सीसी कैमरा तो चेक करके देखो। तो मेरे को क्या बोलता है, मतलब सर एक्सीडेंट केस लिखने से इसको इंश्योरेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैं दिलाता हूँ। अरे वो उसका 14 साल की बेटी को लेके एक गांव से एक उसकी बीवी को लेके, कुछ भी भाषा भी मालूम नहीं, आया कचरा चुनने के लिए, उसका मर्डर हो जाता है और तुम एक्सीडेंट केस लिखा देते हो। वो थोड़ी आके वो क्लेम करेगी इंश्योरेंस, कौन फिरेगा? जान मेरी बेटी की, अभी उसको मेरे हस्बैंड को मार दिया, मेरी बेटी का कहीं रेप ना हो जाए, मेरी बेटी का ये ना हो जाए बोल के वो पश्चिम बंगाल चले जाती है, आते नहीं कोई, समझे? जितना केस हुआ है विटनेस संदेह, कोई भी संदेह डर के फिर वापस आता नहीं। वो चाहे दिल्ली में जाके काम कर लेगा, किधर जाएगा, वापस अपनी जिस जगह इंसिडेंट होता है उधर नहीं आते। कितना 9 साल का बच्ची, उसको पश्चिम बंगाल का बच्ची, उसको लेके जाके रेप किया, समझे? रेप करने के बाद ब्लेड निकाल के उधर पैरों के पास काट देता। जब ब्लीडिंग शुरू हुआ वो परेशान होकर ब्लेड से काट देता रान। फिर उसको लेके जाके रेलवे ट्रैक में मारने के लिए जान से मारने जाता यलंका की तरफ, तब जाके पब्लिक पकड़ लेती है ये क्यों बच्ची को ले जाता, तब जाके एफआईआर होता, उसको जेल होती है। लेकिन माँ है ना, 9 साल की बच्ची, वो बोलती भैया कहीं भी मीडिया में नहीं है ना, मीडिया में तो ऑटोमेटिक आ जाता है, पुलिस स्टेशन से ही मिल जाता न्यूज़। उसके बाद इतना शर्मिंदा होकर वो चला गई मुर्शिदाबाद, नहीं आई। नहीं, आप तो एक बार मुर्शिदाबाद की मालदा में हमको जो न्यूज़ आया, आप बुरी तरह एक बार पिटने वाले थे। जब आप ऐसा एक रेप हुआ था यहाँ पे एक लड़की का, आप उसको फाइट करते करते विटनेस ये सब लेने के लिए आप वहाँ गए थे। पूरा गांव का गांव आ गया था कि आपको मारने की नहीं, छोड़ो ये केस काय को परस्यू कर रहे हैं। हाँ, ऐसा इनफैक्ट वो तो आपके बचपन के स्टोरी के साथ कनेक्ट होता है, जहाँ पे आप एक अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट हाँ। केस जो आपके स्कूल में हुआ। बंगाली वुमन का बहुत इधर रेप हुआ है बेंगलुरु में, बेंगलुरु नहीं, मैं पूरे सिटीज़ में बोलता हूँ, हुआ है। आप डाटा चेक कर लीजिए, आरटीआई डाले तो पूरे स्टेशन से मिल जाएगा। डॉक्टर सिल्विया करपगम थी हमारे साथ में, दर्शना थे, समझे? और विमोचना के भी, हाँ, विमोचना एक्टिव सब गए। तब है ना एक गैंग रेप हुआ था, तो वो टाइम पे है गैंग रेप हुआ तो हस्बैंड और वाइफ है ना, बोला हस्बैंड बोला कि अभी बेंगलुरु हमारे लिए सेफ नहीं। वो लोग एफआईआर भी नहीं कर पा रहे हैं, करना भी नहीं चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए झंझटों में है ना, बस अपना जान बचा, हम चले जाएंगे। तो वो टाइम पे एफआईआर भी नहीं हुआ, तो हमें बहुत ये अफसोस हुआ। तब मैं उसका गांव भी गया था, तो वो लोग हाथ जोड़ के बोले हमारे गांव में बहुत इज्जत है भैया, आप थोड़ा भी अगर इधर हमारा घर के बारे में बात करेंगे, बीवी के बारे में, तो हमारा इज्जत जाएगा, हम लटक जाएंगे, इज्जत हमारे इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ भी बोल भी नहीं सके, तो वापस आए, समझे? ऐसी चीज़ें होते हैं। अभी पॉक्सो ट्रैफिकिंग भी तो बहुत हो रहा है ना कलीम भाई। मैं जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मेरे सोर्सेज जो है बोलते हैं कि पुलिस, पॉलिटिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार, उनको सभी ये जो क्या बोलते हैं, पिम्प ही बोल सकते हैं उनको ना। ट्रैफिकर जो है वो सिर्फ ट्रैफिकर नहीं है, ट्रैफिकर भी है, पिम्प भी है वो एक टाइम पे। देखिए, ये पश्चिम बंगाल के लोगों में कम हुआ है, बांग्लादेशी जो जुग्गियाँ हैं उधर ज़्यादा हमने सुना, क्योंकि वो हम जाके वो रेड हैंड का भी देखा नहीं है। बस इतना मालूम हुआ कि कभी लैंड ओनर है ना, और हस्बैंड को बाहर खड़ा था, उसके बीवी को अंदर ले गया। वो तो मैं पहले किताबों में देखा था, वो मनुस्मृति के टाइम पे वो पुरोहित लोग है ना, दलित लड़कियों के साथ, आज वही मैं बंगाली मुसलमानों के साथ देखता हूँ। तो ये चीज़ें भी हैं। वो देखिए, कोई औरत है ना अपना मर्जी से ये नहीं करती, इज्जत से रहना चाहती, उनके किसी ना किसी से चीज़ों में है ना उसको ब्लैकमेल करके, हरासमेंट करके, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा ये चीज़ मिला है, वो चीज़ मिला, ऐसा बोल के दबा के उसके साथ गलत किया जाता है। एक बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की लड़की मेरे पास ये शिया बोल के वो इंटर्न के लिए आई थी। जब मैं जोगियों में लेके गया, वो घाबरी होके आके बोली, भैया ये लोग तो बोल रहे कि इनके साथ रेप होता है। हाँ, अगर मैं बोलूँगी तो मेरा हस्बैंड विथिन सेकेंड ये कर देगा, डिवोर्स कर देगा, तलाक दे देगा, क्योंकि वो तो जपता रहता है कि तो वैसा है, हमको डर है, बोल भी नहीं सकते हम।
तो ये चीज़ें वो लड़की फिर वो एग्ज़ाम में वो लिखी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट क्लास में पास हुई। आज वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर है वो। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स लोग जो इंटर्न करते हैं ना, उनको ये ग्राउंड रियलिटी अच्छा सा मालूम होता है। पुलिस अट्रॉसिटी क्या होती है, पुलिस कितना पैसा वसूली करती है, ये चीज़ें सब है ना ग्राउंड रियलिटी मालूम होता है। हमने केस भी किया, पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया, ट्रांसफ़र भी किया कि गरीब जोग्यों में उनको भी नहीं छोड़ते, मंथली पैसा दो बोलते। तो उनका ठेकेदार रहता ना, उनके पास लेते। मैं बहुत सारी बार है ना एसीपी डीसीपी उनसे डिस्कस करता, सर ये क्या है सर, रैक पिक कर, वो कचरे में चुनता है सर, वो उसमें कचरे में कॉन्डम आता है, नैपकिन्स आता है, पैम्पर्स आता है, वो अपने हाथों से वो औरत अलग करके कुछ ना कुछ इसमें पैसा जमाती है। ये गंदे काम करके वो जो अपना पेट रोजी पालता है, उसका भी पैसा रिश्वत चाहिए क्या पुलिस को? ये सब पुलिस रिफॉर्म होना बोल के मैं बहुत बार है ना आर्ग्यूमेंट किया हूँ, डिस्कस किया हूँ, डीसीपी उनसे बात किया हूँ, तो वो लोग बोले कि रिफॉर्म करेंगे। उसमें कई पुलिस वालों को उन्होंने निकाल फेंका। लिम भाई, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा हमारे सिविल सोसाइटी में थोड़ा सा रिफॉर्म होना चाहिए? क्यों बोले तो अभी पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ फिलहाल बांग्लादेशी है, बंगाली मुस्लिम जो वेस्ट बंगाल से आता है, जिसके पास करेक्ट 1-2-3 जनरेशन का हिस्ट्री है वेस्ट बंगाल में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जेन्युइन बांग्लादेशी लोग यहाँ बैंगलोर में, केरला में, तमिलनाडु वगैरह में, नॉर्थ इंडिया, इवन जहाँ पे बीजेपी पावर में है, आप तो वही बोल रहे थे कि जहाँ बीजेपी पावर में है, आपने देखा है कि वोटर कार्ड वही लोग देते हैं उनको और वही लोग बुला के लेके आके बिठा लेते हैं। आप चेक कर लीजिए ना, बोमनहल्ली गया ना, पुनीत केरली, वो किसका एरिया है? सतीश रेड्डी। गया इधर व्हाइटफील्ड, वो कहाँ है? अरविंद लिम्बावली। वो जितने जगह गया है वहाँ पे बीजेपी एमएलए है ना, बीजेपी एमएलए के अंडर में ही क्यों बांग्लादेशी लोग हैं? बैंगलोर में सबसे हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है बांग्लादेशी माइग्रेंट लेबरर्स का, वो है या तो महादेवपुरम में या फिर बोमनहल्ली में। बिल्कुल, इनके एजेंट जो हैं, जो बांग्लादेशी जो एजेंट हैं जो लेके आते हैं, वो क्यों उनके एमएलए के साथ दोस्ती उतनी अच्छी रहती है? पुलिस भी उनको ये करती है क्योंकि एमएलए का आदमी है। तो इधर खुला देखिए ना क्या है, सबको तो दिखता है। वो एफआरआर को भी मालूम है, पूरी रिपोर्ट मालूम है। सभी को मालूम है, लेकिन आज तक मैं आपके प्रोग्रेसिव सर्कल में, मैं आपको भी, आप बुरा मत मानो, अगर आपको भी अगर मैं पॉइंट आउट करके बोलूं, आप में से किसी ने भी आज तक ये ऐलान नहीं किया कि हाँ है बांग्लादेशी है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? जो हम लोग क्या हो रहे हैं, एक यहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का जो वो लोग क्रिएट किए, दो, एक हिंदू जल्लाद, एक मुसलमान जल्लाद, आपको चीर फाड़ के दो कंट्री क्रिएट किया। हमें उसमें जाके घुस के बात करते हैं ना हमें आज यहाँ पे, क्योंकि कौन भी आज का बैंगलोर में ऐसा कोई सिविल सोसाइटी मेंबर या फिर प्रोग्रेसिव एक्टिविस्ट मैंने नहीं देखा जो बोलते हैं हाँ यहाँ पे बांग्लादेशी है। हाँ, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट है तो वो फॉल्स डॉक्यूमेंट है। लेकिन तो क्या हुआ? उसके ऊपर जुल्म हो रहा, इज्जत की रोटी कमा रहा उन्हें, किसी का चोरी नहीं कर रहा, किसी का काट रहा नहीं, किसी का भी लूट रहा नहीं उन्हें, उल्टा उसके ऊपर लूट मचा रहे लोग। हाँ, उसका खून पी रहे। हाँ है वो, नो यहाँ है, उसके लिए क्या तो भी करना कर को। आपका पूरा जो डिस्कोर्स है क्या है कि पुलिस, बीजेपी, इन्हों से भी क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल से मुस्लिम है उनको रॉन्गली बांग्लादेशी करार कर रहे हैं। पूरी जो सिविल सोसाइटी है, लेफ्ट सिविल सोसाइटी, खाली उस मुद्दे पे फोकस कर रही है, जो सही है, गलत नहीं है, वो भी सच है कि आज की तारीख में यहाँ के संघी को मालूम नहीं है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन वेस्ट बंगाल से है। जो बंगाली बात करते हैं उनको भी पता नहीं चलता कभी कभी कि कौन बांग्लादेश से है, कौन वेस्ट बंगाल से है। तो जब ये सिचुएशन है, क्यों ऐसा है, एक रिलेक्टेंस है? क्या आप लोग क्या सिस्टम से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, हिंदुत्व से डरते हैं? क्या है प्रॉब्लम? क्यों नहीं बोल सकते आज की तारीख में कि हाँ बांग्लादेशी है, हाँ वो आपका कचरा उठाता है, वो भी इंसान है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, केस रजिस्टर करो, कुछ करो। क्योंकि अगर वो इलीगल इमिग्रेंट है, फिलहाल में खलीम भाई, वो एक केस भी रजिस्टर नहीं कर पा रहा खलीम भाई वो। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, आप जो पहले भी मेरे को एक सवाल किए थे सही इसी मुद्दे पर, क्यों नहीं बता रहे? हम तो वो टाइम पे आप चेक कर लीजिए, न्यूज़ में, मीडिया में है, बांग्लादेशी हैं, ये खुल के बात कर रहे हैं हम लोग। अगर वो नहीं है ना खलीम भाई, बांग्लादेशी, बात को खींच रहा हूँ मैं। हाँ, अगर वो नहीं है, अभी देखो फॉर एग्जांपल गुरुग्राम में, नोएडा वगैरह में इन संघी लोग फिर से स्टार्ट करे बांग्लादेशी। जब सही में उठाना, क्रैकडाउन सभी पुलिस शुरू करे, उसको हाफ में रोक दिए वो। क्यों? क्योंकि पूरा सिटी आको वहाँ पे गार्बेज का जो इंडस्ट्री है ठप हो गया वो।
कचरा उठाने वाला आदमी कौन भी नहीं था वहाँ। पूरा उनका हम्म। कॉर्पोरेशन वहाँ का ये उनका काम स्टॉप हो गया। वो पूरा नदिया एंड हर कोई जानता है कि बेंगलुरु में भी अगर ऐसा कर भी सही में बांग्लादेशी को हटा दिया। गुरुग्राम में जो है ना उतना बांग्लादेशी लोग नहीं है, थोड़े हैं, 20% रहेगा। 80% जो है नदिया से ही जाके वहाँ पे कचरा उठाता था, नदिया डिस्ट्रिक्ट के ही। और मालडा का लोग जो है वो सिक्योरिटी काम, पूरा मालडा का लोग ज़्यादा भरा था गुरुग्राम में। नदिया का जो है वो कचरा उठाता था। जैसे ही जब सब जोग्यान तोड़ी गई तब मैं भी था, रमज़ान का महीना था, रोज़दारों को तकलीफ़ थी, पूरा ईद भी नहीं मना पाए। तो हमारे स्वराज इंडिया से बोले कि वहाँ पे बिरयानी पका के ईद मनाना बोल के हमको ऑर्डर दे। तो वहाँ जाके रहे, 35 डेज़ था। फिर उनको अलग जगह हम लोग बना के दिए। वहाँ पे जो बेहतरीन काम कर रहे हैं ना वो ये माइग्रेंट्स के ऊपर, वो एमपी समीरुल इस्लाम, राज्यसभा का एमपी, वो एक ही बंदा जो है पढ़ा लिखा अच्छा दिखा हमको, जो माइग्रेंट्स वर्कर का बोर्ड का चेयरमैन है पश्चिम बंगाल का। वो मजदूर का एक फ़ोन भी है तो फ़ौरन मदद के लिए जाता वो है। भी आई एम श्योर वो काम कर, अगर उसको बोले, अगर वो क्या वो खुल के बोलेगा हाँ ये बांग्लादेशी है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ करके? नहीं नहीं वो नहीं, बोलेगा वो क्या पश्चिम कि बंगाल के नहीं, लोगों वो के हाँ, लिए। वो बोलेगा। आपका जो सवाल है मैं वो बताता हूँ, उससे आता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल का मुस्लिम और बांग्लादेश का मुस्लिम एक दूसरे को सेट नहीं होता, सांप मंगूस का लड़ाई। एक जगह रहे तभी वो एक दोनों एक ही जो ये है ना कॉलोनी में मिलके भी नहीं मिलके रहते। भी नहीं रहते। वो क्यों अलग क्यों रहता है, क्यों हुआ वो? बांग्लादेश अलग रहता है, ये अलग रहता क्यों है। हुआ वो? समझे, है वो तो एक ही नस्ल, एक ही माछ भात एक के ही लोग हैं। मसल, खाली बॉर्डर का फर्क है। वही माछ भात में वही ये माछ भात खाता सभी है, एंड नहीं, गिजा नस्ल और भी एक ही सरसों है। का तेल, पूरा खाना पीना सब दोनों का एक ही है। नस्ल भी एक ही है। एक ही है। नस्ल भी एक ही है। ये क्रिएशन इनके बीच में जो राइवलरी है, आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का आदमी वहां जाके अटैक कर रहा है, वहां का आदमी यहाँ का अटैक कर रहा है। कहाँ? मारथली में, मुनिकोलाला में, व्हाइटफील्ड में, बिल्कुल। राइट। इन ये वेस्ट बंगाल के मुस्लिम और बांग्लादेश के मुस्लिम वहां लड़ रहे हैं वो लोग। यानी ये क्या को लड़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों में डेस्परेशन है, रोटी एक ही है, फाड़ के खाना। एंड पुलिस का दबाव है, ये संगी लोगों का दबाव है बोल के जो वेस्ट बंगाल का मुस्लिम है वो किसी भी तरह प्रूव करना चाहता है कि मैं वो नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं वो नहीं हूँ बोलने का मतलब क्या हुआ खलीम भाई? मैं वो नहीं हूँ का मतलब ये है कि मैं बंगाली नहीं हूँ? क्या मैं मुस्लिम नहीं हूँ? क्या मैं माछ भात नहीं हूँ? क्या मैं सरसों का तेल नहीं हूँ? मैं वो नहीं हूँ बोलने का मतलब ये है कि लास्ट 50-60 ईयर्स में हमारे बीच में कुछ तो हो गया। मेरा ये डॉक्यूमेंट है, उसका वो डॉक्यूमेंट है। यही है कि मैं वो नहीं हूँ जब बोलता है वो। हम जब जाते हैं यहाँ पे फील्ड वर्क के लिए, जब जाते हैं कितना डेस्परेशन में बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं उस तरफ से नहीं हूँ, मैं इस तरफ से हूँ। बट है तो तू वही बंगाली। नहीं नहीं नहीं, हम वो बंगाली नहीं है बोलता है। बॉर्डर पार्टीशन के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुए ना, तो उसमें यह है। और एक क्या है, आप इनको पूरा हटाए तो भी मुश्किल ही हो जाता। गार्बेज जैसा ये हो गया, गुरुग्राम गार्बेज सिटी हो गया, ये गार्डन सिटी भी गार्बेज सिटी हो जाएगा। ये पूरे लोगों को मालूम है, हायर अथॉरिटी सब मालूम है, यही लोग कचरा उठाता है, ये चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाए, जैसा यूएनएचसीआर है, रेफ्यूजी कार्ड है, अगर वो दे दें, समझे, तो वो क्या भी दिक्कत नहीं रहेगी। रेफ्यूजी कार्ड लगा के चलेगा, जैसा रोहिंग्या को यूएनएचसीआर से रेफ्यूजी ये डॉक्यूमेंट दिया है, रेफ्यूजी कार्ड, तो वो दिखा के चलते हैं, समझे। तो ये अगर रेफ्यूजी कार्ड बनती है तो उसमें उनको क्या भी दिक्कत नहीं रहेगा रहने के लिए। बांग्लादेशी लोग का अलग कैसे बनेगा खलीम भाई? इंडिया तो यूनाइटेड नहीं, नेशन में रेफ्यूजी कन्वेंशन में सिग्नेटरी नहीं है। हाँ वही तो नहीं, अभी रोहिंग्या को जैसा दिया है ना, अभी तो रोहिंग्या को पहले रेफ्यूजी मानते थे। देखिए मेरा देश जो मेरा देश है ना, इतना दिल वाला देश पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ना सऊदी भी नहीं मिलेगा, दुबई भी नहीं मिलेगा। इतना दिल वाला देश, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाकायदा शरणार्थी रेफ्यूजी के लिए राइट टू लाइफ है। बाबा साहब अम्बेडकर जो बनाया कानून, बहुत दूर तक सोच के बनाया। तो समझिए, जब कानून कॉन्स्टिट्यूशन में है रेफ्यूजी को, आज तुम रेफ्यूजी वर्ड निकाल के घुसपैठिया बना रहे हो, घुसपैठिया बोल रहे हो, तो वो भी रॉन्ग है, जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख रहे हो। बट वो बोलता है कि रेफ्यूजी अगर आप स्टेटस मांग रहे हो तो रेफ्यूजी सिर्फ वहां से जो हिंदू लोग मुसलमानों के जुल्म से भाग के जो लोग यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल वही तो एनआरसी का लॉजिक। नहीं वो समझाओ। जब एनआरसी का लॉजिक देखिए, 2 टाइम में देखा, जब सीए आया तभी 2000 जो लास्ट टाइम का जो बंगाल इलेक्शन था, वो टाइम पे भी हमने देखा कि बहुत सारा कोल्लानी एरिया गया था, बहुत सारा लोग हिंदू बांग्लादेश से आए, उनको वहाँ कैंप बना के उनको वोटर आईडी कार्ड बना के दिए, तब जाके वहाँ बीजेपी का वोटर इंक्रीज हुआ। आने दीजिए, क्योंकि वहाँ हरासमेंट होता, क्योंकि जो भी कंट्री रिलीजियस के ऊपर दम पे चलती है
कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर रिलीजियस को रखिए, उधर जुल्म ही होगा माइनॉरिटी पर। जो भी मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पर जुल्म करेगा, जैसा अभी यहाँ पे हो गया इंडिया में। पहले बहुत सेफ था, अभी यहाँ भी तो धर्म के नाम पे ही तो हिंदुत्व, सनातन, ये सब लफ्ज़ है ना, हमारे बचपन में नहीं सुने थे। मेरा बचपन आप बोलते ना, मैं मंदिरों में भी सोता था, किसी को क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर मैं बोलूँ कपिस्थलम, तंजावुर के पास कपिस्थलम है, जो मूपनार जो पहले जो पीएम का इसके था, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था वहाँ पे मूपनार, उसके गांव में था मैं। तो मेरा बर्थडे के दिन जो है, मैं रात के 3 बजे जो है मैं पैदा हुआ था, वो दिन मैं ना गॉड को शुक्रिया अदा करता कि मेरा हाथ पैर सब सही है। तो उधर तो मस्जिद नहीं थी, मंदिर थी। मंदिर के पुजारी को बोला ऐसा मेरा बर्थडे है, रात में मैं 3 बजे उठता हूँ, भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। अब भगवान बोलते मैं अल्लाह बोलता हूँ। तो बोला पानी लगा के रखा वज़ू का, तुम इधर वज़ू करना, उधर नमाज़ पढ़ लेना। मंदिर में भी पढ़ा भाई, पहले नहीं था, अब भी तो देख रहा हूँ तो इतनी नफ़रत, इतना ये है। कितने लोग दरगाह को आते थे हिंदू लोग, कभी ऑब्जेक्शन नहीं था भाई, समझे। ये वो टाइम पे तो था ना, ये 2014 के पहले जो था मेरा इंडिया, वो ही मेरा रियल इंडिया है, समझे। आज मेरे बच्चे जो है उसे भी वो ये नहीं, कंफर्ट नहीं महसूस कर पाते। अभी समझो आने वाला जनरेशन कितना डिफरेंसेस आ जाएगा, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं देखा ना। यही तो आजकल जो कश्मीरी फाइल, वो केरला स्टोरी, ये देख के स्कूल के बच्चों को जो नफरत फैला रहे हैं, उसमें तो मेरा इंडिया एकदम बहुत खतरनाक तरीके से ये हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, जेनोसाइड होगा, लिंचिंग होंगे। तो ये तो बच्चों के दिलों में नफरत फैला रहे हो। सेंसर बोर्ड के नाम की कोई चीज़ है। अगर वो टाइम पे कोई मुगल बादशाह जो जुल्म किया होगा, उसकी सज़ा यहाँ के मुसलमान को क्यों दे रहे हो भाई आज के, समझे। वो क्या भी मुगल की प्रॉपर्टी में तो नहीं बैठा है ना, उसका मेहनत से उसका ज़मीन पे बैठा है। तो ये चीज़ें हैं ना, बहुत नफरत जो फैल रही है, इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मैं आखिरी सवाल आपको अभी अगर करना चाहूँ तो फिर से वही पॉइंट को मैं एक बार दोहराना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, आप मैं एक समझ बार गया। और आपको मैं शायद थोड़ा सा एक फंसाने का कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, आप मेरे को एक सवाल भी किए थे, आप यूनिवर्सल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो या सिर्फ है ना इंडिया के लिए एक्टिविस्ट हो, इंडियन के लिए एक्टिविस्ट क्या हो? करते हैं ना खलीम भाई, हाँ, मैं वो देखो आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आप पूरा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं यहाँ के, बिल्कुल ना फंडिंग है आपके पास, ना वो पावर है, ना गवर्नमेंट आपके हाथ में है, वो सब तो ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आप मेरा एक ही क्रिटिसिज्म है कि आप लोग खुल के ये नहीं बोलते कि भाई नेशनैलिटी का और हमारा कोई ताल्लुक मत जोड़ो, हम लोग लेबर एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। हाँ, क्योंकि देखो अभी यूएस में ट्रम्प आके यही कर रहा है, इसको मेक्सिकन्स को लेकर यही कर रहा है। बिल्कुल या फिर जर्मनी में, अलग अलग यूरोप की कंट्रीज में देखें तो जो वहाँ पे भी मुस्लिम्स ज़्यादातर, जो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह से जो माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं या फिर मेक्सिकन लेबरर्स आते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे जिस तरह से ये लोग बांग्लादेशी कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग मैक्सिकन करते हैं या फिर अफ्रीकन करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, पुलिस वहाँ पे उनके ऊपर जुल्म करती है। लेकिन अगर आप वहाँ के सिविल सोसाइटी को देखो, वहाँ के लोग कम से कम इतना तो करते हैं कि बोलेंगे कि हाँ है मैक्सिकन, हाँ डंकी मार के आया है वो, लेकिन हम उसको शेल्टर देंगे, उसका पेपर वर्क हम रेगुलराइज करेंगे, उसको एक इंसान की जिंदगी जीने का एक मौका हम उसको ढूंढ के देंगे। लेकिन इंडिया में जहाँ कहीं भी आप लेफ्ट एक्टिविस्ट देख रहे हैं, उनका ना एक तरह से मोदी उनके पॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा है इस मामले में। मोदी या फिर संघीज जो हैं, वो लोग आप लोगों की पॉलिटिक्स को एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग ये नहीं बोल पा रहे कि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक इंडियन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं हूँ। क्या आप बोलेंगे कि मैं एक इंडियन लेबर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ? आप एक लेबर राइट्स एक्टिविस्ट है। मैं एक इंडियन ह्यूमन राइट्स, मतलब फॉरेनर को किसका भी ह्यूमन राइट्स खराब हुआ तो उसको मर गया, लुट गया, रेप हो गया, कोई फर्क नहीं, मैं खाली इंडियंस को देखता हूँ। ऐसी कंडीशन आ गई है ना खलीम भाई अभी फिलहाल लेफ्ट सिविल सोसाइटी में विद रिगार्ड टू बांग्लादेशी। रोहिंग्या में हम काम किए, समझे। दिल्ली से खालसा एड जो है, सिखों की जो कम्युनिटी है, वहाँ से चैरिटी मिला, समझे। सब जगह से क्रिश्चियन कम्युनिटी जाके वो अपनी चैरिटी रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ में काम करती है। तो रेफ्यूजीज़ के लिए काम करने के लिए सभी रेडी है, समझे। लेकिन ये बांग्लादेश इशू कब आया है कि ये जो लफड़ा हो रहा है ना, उसमें है ना नफरत। अगर बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाइयों को जलाया नहीं जाता था, सताया नहीं जाता था, तो हम लोग भी ये रहते थे। हम हमारे देश के साथ ही खड़ेंगे ना, समझे। उनको भेज दो, जो बांग्लादेशी है उनको इज्जत से भेज दो। हालांकि बॉन्डेड लेबर गुलाम बनाया हुआ है, वो अपने पसंद से नहीं है बांग्लादेश से। हाँ, एजेंट लोग जो लेके आए ना, वो करोड़पति हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं बेंगलुरु में, आप जाओ कहीं भी जाओ, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं।
तो वो लोग पैसा वाला हो गया। जैसा आप बोले ना बीबीएमपी के कॉन्ट्रैक्टर वो गरीबों को बॉन्डेड ले ना, वैसा बांग्लादेशी एजेंट जो हैं वो गैंगस्टर भी हो गए हैं। तो मारना, मेरे पश्चिम बंगाल के मजदूरों पर अटैक करते वो लोग, एफआईआर किया हूँ मैं। बांग्लादेशी लोग जो है गुंडे मेरे पश्चिम बंगाल के मजदूरों पर अटैक करते हैं। तो उल्टा पुलिस है ना हमारे को प्रोटेक्शन करने के बजाय उनके सपोर्ट में क्यों खड़ती है, वो भी मेरा ऑब्जेक्शन है। समझे, ये चीज़ें सब डिफरेंसेस आ गए। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ ना, बांग्लादेशी और पश्चिम बंगाल का मजदूर में डिफरेंसेस है। अगर मैं एक एक्टिविस्ट होकर वो खड़ूंगा तो इंसाफ देखूंगा ना। अगर ये लोग अगर बांग्लादेशी लोग मारते तो अलग बात था, मैं वो बोलता था कि नहीं मारो भाई बोल के। उल्टा मेरे इंडिया वालों को मारेंगे तो इंडियन मुस्लिम्स को, बंगाली है तो वहाँ तो मेरे को बंगाली मुस्लिम के साथ ही, पश्चिम बंगाल मुस्लिम के साथ ही खड़ना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा कानून है डिपोर्ट करो, क्योंकि फॉरेनर्स को हम मारने का अधिकार नहीं है, टॉर्चर करने का भी नहीं है। जहाँ जहाँ बांग्लादेशी है तो उनको है ना आराम से डिपोर्ट कर दो उनके देश को, और समझा के भेजो कि फिर वापस नहीं आना, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब नहीं है मेरे भाई। 100 बाके पूरा कब्जा कर, कोई बोलता है खलीम भाई जॉब नहीं है, जॉब हमारे नहीं है नहीं, सुनो हकीकत खलीम भाई, में। मैं सब बोलता लोग हूँ बोलते हैं नदिया कि के लोगों को ही जॉब नहीं है। अगर मैं पूछूंगा ना आपको, कॉन्ट्रैक्टर उठा के देखो, बताओ बीबीएमपी का अभी जीबीए हुआ है, लिस्ट चेक कर लेना, कितने मेरे पश्चिम बंगाल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, नहीं दिया, बांग्लादेशी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उठाने का। समझ में आई बात? क्योंकि वहाँ पे और भी प्रॉफिट ले सकते हैं वो करके। हाँ, तो ये तो क्योंकि अगर वो बांग्लादेशी है तो कहाँ 10 रुपए स्कैम उसके कमीशन ले रहा है, वो 50 रुपए ले सकता है स्कैम है। commission। मैं विनती करता हूँ आपके इसके चैनल के थ्रू भी, बांग्लादेशी बहन लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमने ग्राउंड में बहुत कुछ सुना, समझे, वो खुद अपनी इज्जत के लिए वहाँ चले जाए तो अच्छा है। समझे, बहुत आने वाले दिन जो है उनको बांग्लादेशी लोगों को रख के मेरा पश्चिम बंगाल वालों को तकलीफ, एनआरसीसी है ये सब, फिर हमें तकलीफ, और एसआईआर में इतना नाम, क्या पागल था वो ज्ञानेश कुमार है, इतना अक्ल नहीं, पढ़े लिखे लोग ने, 95 लाख लोग तुमको अगर बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं, तो बीएसएफ के ऊपर तो नेशनल सेक्रेटरी पर सवाल उठ जाता है, इतनी भीड़ कैसा आ गया अंदर। समझे, वो कुछ लोग हैं दर्रे हैं, वो भी वहाँ रहने देते नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, बांग्लादेशी बंगाली को नहीं जमता है। हाँ, कुछ लोग जो बॉर्डर में हैं, इधर का लड़का उधर शादी किया, उधर का लड़का इधर शादी किया, वो चीज़ें भी देखा मैं। समझे, लेकिन है ना हजम नहीं करते, पसंद नहीं करते वहाँ का लोग। अभी अगरतला में जब गया था मैं, जब शेख हसीना को ये हुआ बुला लिया ना, वो भी तो बांग्लादेशी है, मोदी जी बहुत वेलकम से बुला लिए, तो बाकी लोगों को तो छोड़ दिए। वो उसका पार्टी का लोग, मैं आंखों देखा अगरतला बॉर्डर से पूरा आके कोर्ट में है ना बीएसएफ वाले लेकर आके कोर्ट में खड़ा करें, बच्चों को, छोटे बच्चों को जान बचाने, क्योंकि पार्टी बदल गई तो इनको भी जान से मार देंगे। तो यही तो बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, शरणार्थी को शरण देना चाहिए, राइट टू लाइफ है मेरे इंडिया में। तो ये लोग अपना जान बचा के उनका हिफाजत करो। समझे, हाँ, अगर ये चीज़ बॉन्डेड लेबर लेके बना लिए हैं तो उनको डिपोर्ट कर दो। जान बचाने के लिए रेफ्यूजी कैंप रहना है, जैसा रोहिंग्या का रेफ्यूजी कैंप है वैसा ये भी रहना। अभी हैदराबाद में रिसेंट 2 दिन पहले रेफ्यूजी कैंप बना है, तो वहाँ का कांग्रेस सरकार है ना, रेवंत रेड्डी ने बनाया है, तो वैसा बनाओ, हिफाजत करो। जान की हिफाजत करना है ना भाई, दूसरा थोड़ी नहीं ना। तो यही, और रेफ्यूजीज के पास जो है अकाउंट ये सब है ना लेने बनाने का नहीं रहता है। रेफ्यूजी रहता है जितना कमाता है वो कैश में रख के घर में ही वो अपना झुग्गी में पैसा रखता है, उसी में खाना पीना चलता है। अभी वो भी बंद हो गया, उनको बाहर फिरने पुलिस नहीं देती है, समझे, कचरा भी उठाने नहीं देती है, ये सब है ना ह्यूमन वायलेशन है, हमें अच्छा नहीं दिखता। तो ये चीज़ पे हम पुलिस वालों को बोलते भाई वो कचरा उठाता है, रेफ्यूजी कार्ड है उसके पास, कम से कम यूएनएचसीआर का तो तुम ये दो, यूएनएचसीआर के इसे गवर्नमेंट से ही सैलरी भी मिलती है, तब अब इसको रिफॉर्म कैसा करना है। ये नहीं कि मुसलमान की दुश्मनी है ना, तुम बांग्लादेशी के बोल के हमारे इंडियन मुस्लिम को परेशान करे, तो ये भी जायज़ नहीं है। तुमको एक ये पॉलिसी बनाओ, बांग्लादेशी है ना इधर रहेंगे, कचरा चुनेंगे, ये बॉर्डर में रहेंगे, रेफ्यूजी कार्ड दिया जाएगा, तो ये चीज़ चलता, क्योंकि उससे वो कचरा उठाए तो तुम्हारा भी फ़ायदा है, क्योंकि कचरा अभी आने वाले दिनों में कोई बंगाली मुस्लिम भी नहीं उठाएगा, देखते जाइएगा। आप जैसे एक लेबर एक्टिविस्ट को हम यहाँ पे एक शो में फीचर कर सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच खलीम भाई, जो आपने हमें बुलाया, हम दिल खोल के बात करें, हमारा आपका शुक्रिया। बहुत बातें हुई खलीम भाई, थैंक यू सो मच। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्राइड to feature somebody like Khalim Bhai, who's a grassroots activist working on the front lines, like I started off this show's telling you. This was that special episode of What's Your Ism that I've been waiting to do for a very long time, focused on the Bengali Muslim and the Bengali Dalit of West Bengal
and Bangladesh. Hang on for the next episode. That's where we really get into this territory of history and how these two absolutely marginalized and acutely persecuted communities have been exploited over the last 5 centuries. Thank you for watching. We'll see you in the next episode.